मेरे पापा ने तो मतलब बोल दिया था ये हॉस्टल नहीं जाएगी, और जब मैं हॉस्टल चली गई 3-4 महीने बोला कि घर में नहीं आएगी, तो मेरी मम्मी चोरी छुप के मुझे मिलने आती थी। क्यों नहीं आएगी आप हॉस्टल से घर पे? मतलब ये है कि हमारे खानदान में आज तक कोई लड़की ने गेम नहीं की, बाहर नहीं निकली, ऐसे कपड़े नहीं पहने। मैंने एक दिन में 6 किलो लूज़ किया। एक दिन में 6 एक किलो? दिन में। वो कैसे? कीड़ा होता है, कीड़ा स्पोर्ट्स एक दिन में 6 किलो? हाँ, एक दिन कैसे? में। कभी महसूस नहीं हो आपको कि यार कहाँ इतनी मेहनत हो रही है, हमारी रील्स वायरल नहीं होती या हमें व्यूज़ नहीं मिलते, और दूसरी तरफ लड़कियां 2 ठुमके मारती हैं तो वायरल हो जाती हैं? देखिए, आपका अंदर का एक ज़मीर भी होता है जो आपको बोलता है कि हाँ मैंने ये करना ही, आपको आपको दिखना भी चाहिए ना कि मैंने सही किया है। आप जब पोस्ट कर रहे हो उसको बच्चा भी देखेगा, बूढ़ा भी देखेगा, जवान भी देखेंगे, सब देखेंगे, आपके मम्मी पापा भी देखेंगे, आपके गांव में भी देखेंगे, आपके ताऊ के लड़के, चाचे के लड़के, सब देखेंगे। फाइनेंशियल फ्यूचर क्या है इसका स्पोर्ट्स का? कुछ भी नहीं है, बी सीरियस, कुछ भी नहीं है कसम से। मेरी मदर ने मेरे लिए जो किया है किसी ने आज तक नहीं किया है। हाँ, हर किसी की मम्मी अच्छी होती है हर किसी के पास, लेकिन मेरे पास तो कसम से वो भगवान है, देवी है मेरी लिए। वाह जी वाह। आपने खुद अपना पार्टनर ढूंढा है? जी। कैसा लग रहा है फिर? माँ बाप कैसे हैं आपके? खुश हैं? बहुत खुश है घर सब। पे कलेश तो नहीं हुआ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ AK ਟਾਕ ਸ਼ੋ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਰ ਐਪੀਸੋਡ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਗੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਤਜਰਬਾ ਚੱਕੀਏ, ਚੋਰੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਿੱਖੀਏ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਇਸ ਕੁਰਸੀ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਦਾ। ਆਲਦੋ ਹਰ ਇਨਸਾਨ VIP ਹੈ, VVIP ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕੁਝ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਫੋਲੋਅਰਸ ਦੀ ਨੰਬਰਿੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਟਾਰ ਬਣਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਪੰਕਜ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਹੀ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਪੋਡਕਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਬਾਕਮਾਲ ਇਨਸਾਨ ਹੋ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਿਤਰਤ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਫੈਨ ਫੋਲੋਇੰਗ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹੀ ਜੇ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰ ਮੈਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਫਿਟਨੈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਿਸਪੈਕਟ ਦੇ ਨਾਤੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਪੋਰਟਸ ਹੈ ਇਹ ਐਕਸਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਏਗਾ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਚੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਕੀ ਹੈ, ਸਪੋਰਟਸ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ, ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਜੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਬੜੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਕਮੈਂਟਰੀ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਊ ਲੈਣੇ ਸੌਖੇ ਨੇ, ਬਸ ਨੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਤਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ, ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਵਿਊ ਮਿਲ ਗਏ। ਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸੱਚੀ ਉਹ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਅੱਗੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣੋ, ਪਰ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਪਰਸਨ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫੀਡਬੈਕ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ प्रिया शर्मा जी, कैसे हो? बहुत अच्छी हूँ सर, आप बताइए आप कैसे? बहुत बढ़िया। कैसे लग रहा है आपको AK टॉक शो पे आकर? मैं तो बल्कि अपने आप को लकी समझ रही हूँ, आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है, आपके सामने बैठना तो मतलब ऐसे होगा कि कुछ किया मैंने अब। अरे नहीं, आप हरियाणा से हो? कहाँ से हो आप बेसिकली? मैं हरियाणा से हूँ, कैथल साइड ही मेरा गांव पड़ता है, सिरसल, मैं वहाँ से हूँ, मेरा जन्म वहीं पे हुआ है। जी जी। तो आपको कैसे लगा आज कि आप इस शो में आ रहे हैं? नर्वस थे कि क्या पूछा जाएगा क्या नहीं? पहली बात तो ऐसा कुछ डिसाइड नहीं हुआ कि क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, तो यही है कि लाइफ सिंपल सी जैसे रही है, स्ट्रगल वाली है, जो आप पूछेंगे वही बताऊंगी आपको। और नर्वस तो थी मैं, बिकॉज आपसे मिलना था पहली बात तो। आपको लोग इतना प्यार करते हैं और इतना चाहते हैं आपको लोग, और आपको लोग इतना फॉलो करते हैं, तो मेरे लिए तो ये था कि बस चलो अब आज का दिन तो बहुत बड़ा है, भगवान का नाम लेके चलो। राम राम जी सारे राम को। राम जी सारे। आपकी सोशल मीडिया पे रील्स भी यही आप शेयर जी करते जी हो जी और बिल्कुल, मतलब उनसे बड़ा तो कुछ भी नहीं है। बड़ा अच्छा लगता है मेरे को कि जब लड़के लड़कियां अपनी मेहनत दिखाते हैं सोशल मीडिया पे। ऑल्दो व्यूज़ कम मिलते हैं, जो बंदा अच्छी बात बोलता है या कोई स्पोर्ट्स पर्सन को व्यूज़ कम मिलते हैं, और जो लड़कियां, कभी महसूस नहीं हो आपको कि यार कहाँ इतनी मेहनत हो रही है, हमारी रील्स वायरल नहीं होती या हमें व्यूज़ नहीं मिलते, और दूसरी तरफ लड़कियां 2 ठुमके मारती हैं तो वायरल हो जाती हैं? देखिए, आपका अंदर का एक ज़मीर भी होता है जो आपको बोलता है कि हाँ मैंने ये करना ही, आपको आपको दिखना भी चाहिए ना कि मैंने सही किया है। आप जब पोस्ट कर रहे हो उसको बच्चा भी देखेगा, बूढ़ा भी देखेगा, जवान भी देखेंगे, सब देखेंगे, आपके मम्मी पापा भी देखेंगे, आपके गांव में भी देखेंगे, आपके ताऊ के लड़के, चाचे के लड़के, सब देखेंगे, यहाँ तक कि आपके पड़ोसियों भी देखेंगे। तो मुझे सबसे पहले जब भी वीडियो पोस्ट करती हूँ या मैं शूट करती हूँ, पहले मैं चेक करती हूँ ठीक है ना, ये मैंने जो मेहनत दिखाई है ये सही तो है। कल को अगर मेरी गली में मुझे 2 बच्चे मिलते तो मुझे ये बोलते दीदी आपके साथ एक फ़ोटो ले लूँ,
छोटे बच्चे आप खुद सोचिए, मेरी वहीं पे मेहनत सफल हो जाती है कि हाँ प्रिया तूने कुछ किया है। अभी बच्चे तुझसे आके बोल रहे दीदी फोटो दे दो, तो मेरे लिए वो सही है कि हाँ ठीक है, अभी अंदर आवाज़ आती है कि तूने सही पोस्ट किया है। आप जूडो करते हो काफ़ी लंबे टाइम से, तो आप मुझे पहले बताइए कि जूडो क्या होता है, ये कौन सी स्पोर्ट्स है, और आपने भारत की तरफ से भी खेला है। जी, तो जूडो लाइक एक रेसलिंग टाइप है, बस हमारे थोड़े कॉस्ट्यूम चेंज होते हैं। जो कॉस्ट्यूम है, हमारी जो ड्रेस है पूरी की पूरी वो कराटे जैसी है, पर कराटे की जो ड्रेस होती है वो पतली होती है, हमारी होती है हार्ड। हमारा मेन ग्रिप यहीं से पकड़ा जाता है और ग्रिप के साथ पूरी गेम होती है। और जितनी भी टेक्निक्स हैं हमारी गेम में वो सारी रेसलिंग से मिलती हुई है। और रेसलिंग में ये होता है कि हम आपको लोअर पार्ट पकड़ सकते हैं, हम हमारे पे नहीं पकड़ सकते बिल्कुल भी, अपर बॉडी से खेलना होता है आपको। तो आप कब से इस लाइन में हैं और कहाँ से ये शुरुआत हुई, कब ये कीड़ा अंदर आया कि मैंने स्पोर्ट्स की तरफ जाना है, किसने इंस्पायर किया आपको? मुझे याद है मेरी मम्मा ने मेरा स्कूल चेंज करवाया था 6th क्लास के बाद। पापा पढ़ा नहीं सकते थे आगे, तो मम्मी ने मेरे लिए सरकारी स्कूल ढूंढा। खुद इधर उधर घूम फिर के 3 नंबर डिवीज़न में स्कूल है, तो वहाँ पे ढूंढा। और मैं कहूँगी मेन डिसिप्लिन जो मैंने सीखा है उस स्कूल में जाने के बाद सीखा है। ऐसे होता है ना कि प्राइवेट स्कूल में ही आप सब कुछ सीखते हो, नहीं, सरकारी स्कूल भी बहुत अच्छे हैं। इंडिया में पंजाब में बहुत अच्छे स्कूल हैं जहाँ पे आप बहुत कुछ सीख सकते हो। तो मेरे टीचर थे, फिजिकल टीचर, हरमीत सर नाम है उनका, हरमीत सिंह। तो वो जूडो की तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे। मैंने बैडमिंटन खेल लिया, खो खो खेल लिया, तो मैं देखती सर मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देते हैं। मैं बहुत बारी बोला मैंने सर को, लेकिन सर जूडो की तरफ ज़्यादा, जूडो वाले बच्चों को प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो मेरी एक सहेली थी, मैंने उसको बोला, मैं कहा चल हमने भी वही करना है। मैं कहा सर का ध्यान हमारी तरफ भी आना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट को अभी 1 हफ्ता रहता था, तो सर ने मुझे थोड़ा बहुत ही सिखाया। हाँ कर लेगी? मैं कहा हाँ सर मैं कर लूँगी। तो शुरू किया, तो डिस्ट्रिक्ट में मेरा फर्स्ट टाइम ही सिल्वर मेडल आया था, पहली बार में। तो वहीं से फिर शुरू कर दी अपनी जूडो की तैयारी करनी। फिर स्टेट में गोल्ड आ गया, फिर नेशनल में मेडल आए, फिर उसके बाद इंटरनेशनल खेलने गई। ऐसे धीरे धीरे करके चीज़ें बढ़ती गई फिर। हरियाणा में स्पोर्ट्स क्यों ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पंजाब या बाकी स्टेट्स? जब भी मैं भी कभी हरियाणा में गया हूँ, वहाँ पर मेडल्स भी ज़्यादा आते हैं एज़ कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स। हरियाणा में स्पोर्ट्स ज़्यादा होने का क्या कारण है? मैं तो कहूँगी जेनेटिक्स है सारे। हुँ, क्योंकि वहाँ की औरतें बहुत मर्दों से भी ज़्यादा ताकतवर है। जी। क्योंकि औरतें एक तो उनकी डाइट बड़ी अच्छी है, ठीक है? दूध, दही घर का। एक उनका काम क्या है, गोबर लेके जाना सिर पे उठा के, भैंसों का काम करना सारा का सारा, घास काटना, बुग्गी जोटा जो होता है उनको लेके जाना। तो ये काम लाइक एक जिम में भी होता है, हम वेट ट्रेनिंग करते हैं, तो ये काम एक घर में है ये। जी। तो वहीं से जेनेटिक्स होते हैं, तो बच्चे बस उसी तरह से आगे जेनेटिक चलते जाते हैं, तो इतने ही प्लेयर निकलते जाते हैं। आपने जैसे बताया कि घर की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब होने की वजह से सरकारी स्कूल में गए। हुँ। आज कैसा महसूस होता है वो कंडीशन सोचकर? मेरे को तो सही होता है, सही हुआ मैं सरकारी स्कूल में आ गई। क्यों? मेरे को तो ऐसा हुआ कि सही हुआ, प्राइवेट में रहती शायद ही मैं एक नाजुक कली होती। मेरे पापा मेरी शादी कराई, अब मेरे 2 बच्चे होते शायद, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा हुआ जो हुआ। उस टाइम पे शायद मुझे ऐसे होता था, जब स्कूल चेंज हुआ, क्या सरकारी स्कूल में जाऊँगी? वो सब बच्चे अजीब होते हैं, गंदे से होंगे सरकारी स्कूल के, है ना? लेकिन जब स्कूल चेंज हुआ, आज मुझे ऐसा लगता है सही हुआ मेरा स्कूल चेंज हो गया उस टाइम पे। अगर नहीं हुआ तो शायद मैं आज ऐसे नहीं होती। आज क्या होते आप अगर सरकारी स्कूल में ना सही होते? होते वही होता कि पापा ने शादी करा देनी थी, 2 बच्चे हो जाने थे, अब रोटी सब्जी बना रही होती, बच्चे संभाल रही होती। यही अभी आजकल आप क्या कर रहे हो? कितने मेडल अभी तक आप ले चुके हो? कितनी ट्रॉफीज़ घर पे आ चुकी हैं? मेडल तो बहुत सारे हैं, बल्कि ऐसा है कि मेडल लगाने की जगह भी नहीं है घर पे। हुँ, ऐसे है, मैं अपनी दीवारों पे पीछे लगा के रखती हूँ। मेरी अब कई वीडियोज़ में मैं अपने कमरे में बैठ के शूट करती हूँ, मेरे बैकग्राउंड पे मेडल लगे होंगे। और ट्रॉफी भी बहुत सारी है। कंपटीशन तो पता ही नहीं है, बचपन से इतने खेले हैं, कुछ तो यादें भी नहीं होंगी कि हाँ ये भी खेला है, वो अच्छा वो भी खेला है। सर्टिफिकेट निकालो तो पता चलता है, अच्छा ये भी मैंने खेला हुआ है, यहाँ ये भी मेडल है मेरे पास। तो ये सारे मेडल्स हैं अभी भी। एक स्पोर्ट्स पर्सन जन्म कैसे लेता है मैम, कि स्पोर्ट्स अंदर कैसे ऊर्जा होती है? क्योंकि आजकल फ़ोन का ज़माना है, हर बंदा कहता है कि बस फ़ोन पे ही लगे रहो, रील्स का ज़माना है, तो स्पोर्ट्स के लिए तो आपको सारा दिन खेलना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है। देखिए स्पोर्ट्स अगर मैं बोलूँ तो ना तो मोटिवेशन क्या है, सारा डिसिप्लिन का खेल है। बिल्कुल आप लगा लो डिसिप्लिन एक, मोटिवेशन एक आग है, डिसिप्लिन भी एक आग है। मोटिवेशन की आग कभी बढ़ेगी, कभी कम होएगी, कभी बढ़ेगी। डिसिप्लिन की एक आग ऐसी होती है, वो कंटिन्यूअसली चलती रहेगी कि आपको सुबह जाना है तो जाना है, उठना है तो उठना है। और ये सारी चीज़ें हमें अपने माँ बाप से भी सीखने को मिलती है। मूड हो ना हो, जाना है। हाँ, जाना ही जाना है, जो मर्ज़ी हो जाए। सुबह के 5 बजे हैं, जाओ, रो-धो जो मर्ज़ी करो, जाना ही जाना है। मेरे कोच तो ऐसे थे, अगर मान लो अभी पीरियड्स प्रॉब्लम आ रखी है, तो कोच कहेगा, "तू आके बैठ जा, देख, पर छुट्टी नहीं मारनी तूने। हुँ, हाँ, तू आ जा, मैटो पे बैठ जा, देख कैसे प्रैक्टिस चल रही है, पर छुट्टी नहीं मिलनी चाहिए तेरी।" आप रोज़ जाते हो? हाँ, रोज़। कितने सालों से आप रोज़ जा रहे हो? मतलब अभी तो ये है कि अभी तो गैप हो रखा है। अभी तो मैं ये सोच रही हूँ कि मेरा सेंटर मैं खुद खोलूँ एक, बच्चों को सिखाऊँ वहाँ पे, ख़ासकर लड़कियों को सेल्फ डिफेंस को लेके। तो अभी तो काफ़ी टाइम से गैप चल रहा है मेरा। और वैसे मुझे करते हुए 15 साल हो चुके हैं। जब मैं 10 साल की थी, 10-11 साल की, तब से स्टार्ट कर रखा है।
मैं ये पॉडकास्ट ना मतलब ऐसे करना चाहता हूँ जैसे ना ये भूल जाएं हम कि कैमरे लगे हुए हैं ना, आपको ये बात सोच के करो कि लोग क्या सोचेंगे, पता नहीं हमारी बात के साथ एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे। क्योंकि पॉडकास्ट का मतलब ये नहीं होता, हम अपना ओपिनियन रखते हैं। हम्म। हो सकता है आपको मेरा ओपिनियन 5 साल बाद समझ आए, मेरे को आपका 5 साल बाद समझ आए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल कंडीशन क्या है हमारे देश में स्पोर्ट्स की, कि जब एक स्पोर्ट्स, ठीक है आपने मोटिवेशन की बात की, डेडिकेशन की बात की, फाइनेंशियल फ्यूचर क्या है इसका स्पोर्ट्स का? कुछ भी नहीं है, बी सीरियस, कुछ भी नहीं है। मतलब जो एक सपोर्ट पीछे से मिलना चाहिए ना एक स्पोर्ट्स पर्सन को, सरकार कुछ नहीं करती है। सच में बताऊँ तो मैंने जब इटली खेलने जाना था, मुझे याद है आज भी वो दिन। फाइनेंस जो पैसों की दिक्कत है वो तो बहुत ज़्यादा है मेरे घर पे, हद से ज़्यादा। उस टाइम तो बहुत ज़्यादा थी, अब तो बहुत काफ़ी बेटर हो चुकी है। उस टाइम पे मतलब हर एक इंसान के पैर पकड़ने पड़ रहे थे, क्योंकि मेरा खर्चा पूरा आ रहा था 2,19,220 ऐसे कुछ करके। अभी भी याद अभी है। भी याद है मुझे। तो कुछ मेरे एक साथ के ही थे, मेरे सीनियर थे, उन्होंने एक डायलॉग बोला था, मुझे आज भी याद है कि अगर ये रहेगी ना पैसों की वजह से रहेगी, कि अगर ये नहीं खेलने गई ना इसकी जगह पे सेकंड वाली लड़की जाएगी, और ये रहेगी तो पैसों की वजह से रहेगी, देख लेना। तो मैं हमेशा रोते रहना, प्रैक्टिस पे भी नहीं जाना कि मैं पैसे कहाँ से करूँ, क्या करूँ। मेरे पापा ने भी हर किसी के हाथ पैर जोड़ लिए, मम्मी ने भी हाथ पैर जोड़ लिए, किसी ने कोई हेल्प नहीं की। मैं अभी एक उनका नाम नहीं बोलना चाहती, वो है कांग्रेस पार्टी के हैं वो। ठीक, वो आए थे एक बारी हमारी गली में, तो बड़े जोर जोर से भाषण दे रहे अच्छे से, मेरे मम्मी पापा वहाँ पे गए हुए थे। तो पापा ने खड़े होके बोला कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, ऐसे-ऐसे करके। तो कहते जी ये मेरे पीएन का नंबर है, इनको कॉल कर लेना, ये आपकी हेल्प कर देंगे। पीएन का नंबर बंद है, हुँ। कोई हेल्प नहीं है। और मेरी डेट पास आती जा रही थी कि भी हाँ, क्योंकि मुझे इंडिया का कोड भी मिलना था, सब कुछ मिलना था, पैसे जमा करवाने थे टिकट्स के लिए। कुछ अता-पता ही नहीं है उनका, क्या करे? तो लास्ट में मेरे कोच ने ही मेरी हेल्प की जैसे-तैसे करके। मेरे जो कोच हैं उन्होंने मेरी हेल्प की थोड़ी बहुत, थोड़े बहुत मेरे घर वालों ने कहीं से ब्याज से उठाए, और तब जाके कहीं मैं खेलने गई होंगी। आपने कभी इस चीज़ का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश की? क्योंकि मेरे भी पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर फ्रेंड हैं, गुरमीत सिंह मीथियर जी, तो मैं भी उनसे बहुत बातें करता हूँ। एज़ कम्पेयर टू पुरानी गवर्नमेंट्स पंजाब में इस बार मेरे को लगता है कि पूरे देश में से शायद सबसे ज़्यादा मेडल्स पंजाब में आए हैं इस बार ओलंपिक्स में। तो उसका भी एक कारण है कि शायद कहीं न कहीं गवर्नमेंट ध्यान दे भी रही है। पर गवर्नमेंट बोलती है कि अगर एक कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो स्पोर्ट्स कर रहा है, तो वो गवर्नमेंट के ऊपर एहसान क्या है कि आप उनसे क्यों पैसे माँग रहे हो? गवर्नमेंट क्यों दे आपको? आप खुद क्यों नहीं कर सकते? इसके बारे में आपका क्या सोचना है? मेरा ये है कि देखिए मेडल आ रहा है तो नाम किसका हो रहा है? देश का? देश का नाम हो रहा है। वो मेडल अगर आज मान लो नीरज चोपड़ा मेडल ले रहा है तो इंडिया आ रहा है पीछे। हुँ। कल को मैं मेडल लूँगी, इंडिया आएगा पीछे। ठीक है, इंडिया के बाद क्या आएगा? मैं अगर अपने पंजाब में वापस आऊँगी, पंजाब का नाम है, पंजाब की सरकार आगे आएगी, पंजाब की सरकार पैसे देगी, तब सरकार खड़ी होगी, हाँ जी देखो जी मैंने ये दिया है। तब तुम क्यों आते जब मेडल आता होता है? हुँ। तो ऑब्वियसली एक बच्चे को चाहिए मुझे सपोर्ट करो, मैं मेडल लाऊँगा अपने देश के लिए। तो मेरा कई बार ऐसे होता है कि जिन बच्चों को अभी तक जॉब भी नहीं मिली है, क्योंकि सरकार ने बीच में बोला था हम जॉब निकालेंगे नहीं। मेरे बीच में तो एक बार मन आया था, जब ये आम आदमी पार्टी आई थी, कि मैं जाके बोलूँ जब जहाँ पे ये भाषण देते हैं कि जॉब कहाँ है? हुँ। जॉब निकालो। बच्चे फिर रहे हैं, बच्चों की एज निकल रही है, 24-24 25 साल के हो गए, बच्चे वेट कर रहे हैं। एक भी भर्ती नहीं निकाली, ना पंजाब पुलिस की, ना किसी चीज़ की। कइयों के तो मतलब ऐसे है कि कइयों ने इतने साल से गेम किया, वो छोड़ रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि ना तो कोई सपोर्ट सिस्टम है पीछे से, ना सरकार का कोई हाथ है। हरियाणा में जो मेडल लेके आता है उसको कितने पैसे मिलते हैं ओलंपिक्स में? मैं आपको सच बताऊँ तो नीरज चोपड़ा को इतने पैसा मिला है, मैं खुद नहीं अब हम गिनने, इतने पैसे मिले हैं उनको। जो एक तो है बैंगलोर में एक सेंटर है, वहाँ से 1 करोड़ मिला है। सरकार ने जितना दिया होगा पता ही नहीं, अनगिनत है उनके पास। अच्छी बात है ये तो। बहुत अच्छी बात है, मिला बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो बाकी के प्लेयर्स हैं उनको भी देने चाहिए। स्कॉलरशिप के जो फॉर्म्स निकलते हैं वो पता नहीं कितने-कितने सालों बाद निकलते हैं। कोई क्राइटेरिया होना चाहिए जिसमें स्पोर्ट्स पर्सन की भी एबिलिटी देखी जाए कि ये काबिल है इसके ऊपर। जैसे अब स्पोर्ट्स बहुत ज़्यादा है पंजाब और हरियाणा में, हुँ। पूरे देश में भी बहुत ज़्यादा है। तो हर बच्चा चाहता है मुझे स्पॉन्सर करो, पर वो काबिल है कि नहीं, वो मेहनत उतनी करता है कि नहीं, इस चीज़ को कैसे? हमारे यहाँ पे ट्रायल्स होते हैं। हुँ। जो ट्रायल में बच्चा जीतता है, उसकी स्पीड देखी जाती है, उसकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, उसके बाद ही उसको एक अलग लेवल पे लेके जाया जाता है। उसके बाद ही उसको स्पॉन्सरशिप मिलती है, पैसे मिलते हैं, एक अच्छा सेंटर मिलता है, खाने को मिलता है, डाइट मिलती है। तो एक ट्रायल होते हैं हमारे बीच में, कॉम्पिटिशन्स होते हैं, उसके बाद ही करते हैं कि हाँ, इन बच्चों को रखना चाहिए, नहीं रखना चाहिए। आपका कहना है कि ट्रायल जीतने के बाद जो बच्चा डिज़र्विंग है उसको ज़रूर स्पॉन्सर करो, हाँ, और जो उसमें फेल हो जाता है? वो पीछे रह जाते हैं, दोबारा फिर तैयारी करेगा वो बच्चा। स्पोर्ट्समैन में यही तो है कि अगर आप हार जाते हो तो वहाँ हार नहीं जाते हो आप, आपको आगे फिर बढ़ना है। आपने कितने इंटरनेशनल अभी तक गेम्स खेली हैं? मैंने कितने? अभी तो एक ही खेला है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स हुई थी 19 में, इटली में हुई थी, नेपल्स सिटी में। क्या एक्सपीरियंस था वहाँ पे मतलब एज़ कम्पेयर टू बाकी देशों के प्लेयर्स के साथ?
वहाँ पे ऐसा था कि जब मुझे याद है अमृतसर में हुआ था, यूनिवर्सिटी JNU, वहाँ पे हमारे ट्रायल हुए थे। तो मेरा पहला टूर था और ऊपर से मतलब जैसे भी सिलेक्शन हुई थी तो मैं ऊपर से जहाज़ जा रहा था। मेरे पास छोटा सा फ़ोन था सैमसंग का। मैंने टाइपिंग करके मम्मी को कॉल किया और मैंने बोला मम्मी होगी मेरी सिलेक्शन, और मैंने ज़ोर से बोला, मैं कहा मैं भी आऊँगी उस जहाज़ में। मैं कहा मैं भी आऊँगी। मम्मी पापा को दोनों कॉन्फ्रेंस कॉल पे लिया। मैं कहा ये सब आप लोगों की वजह से है। तो मैं क्या, अब मैं जा रही हूँ वहाँ पे, ऐसे-ऐसे करके। कहते ठीक है। लेकिन जब मैं इटली में गई, वहाँ पे लोगों को देखा, प्लेयर्स को देखा, सबसे बड़ी बात तो मुझे ये लगी उनके साथ मेडिकल जो डॉक्टर्स हैं, वो खड़े हैं उनके साथ। अगर उनको इंजरी भी हो रही है, चोट भी हो रही है, उनको टेपिंग कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, मसाज कर रहे हैं। हम बैठे इंडिया वाले चुपचाप करके देख रहे हैं, खुद ही पट्टी बाँध रहे हैं, खुद ही लगे हुए हैं अपने खाना-पीना करने। तो बहुत शर्म लग रही थी कि यार मतलब क्या है ये? बहुत बुरा लग रहा था कि मतलब उनके साथ पूरी टीम आई है, हमारे साथ हमारा कोई इधर है, कोई उधर है, कोई इधर गया, कोई उधर गया। ये चीज़ है वहाँ पे। मैम एक बार आपकी वीडियो वायरल हुई थी, आपको शायद याद हो, जिसमें आप रो रहे थे बहुत ज़्यादा, शायद वृंदावन की वो वीडियो थी। वो वीडियो है बागेश्वर धाम की। क्यों रो रहे थे वो आप? मेरी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हुई हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें हुई हैं, मैं बता भी नहीं पा रही हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ चेंज हुई है बागेश्वर धाम के बाद। आप मैं बाबा जी से भी मिले हो? उनसे बस दर्शन किए मैंने दूर से, सिर्फ दूर से दर्शन किए, उनका आशीर्वाद लिया दूर से ही। और मेरी लाइफ, मैं इतना ज़्यादा मानती हूँ बजरंग बली को, हद से ज़्यादा मानती हूँ, बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मतलब सुबह आँख खुलती है तो राम जी का नाम आता है। वाह जी वाह! और डेली मैं 108 बार हनुमान जी का मंत्र है, राम जी, उनका जाप करती हूँ डेली सुबह। उससे क्या मिलता है आपको? शांति मिलती है, सुकून मिलता है, एक ताकत मिलती है, पॉजिटिव फील होता है कि लाइफ में कोई आज कुछ भी दिक्कत होगी देखी जाएगी। वैसे मुझे ये सवाल पूछना चाहिए कि नहीं पता नहीं, पर आप वो यकीन रखते हो कि जैसे वो पर्चा पढ़ देते हैं कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा है पीछे नहीं? बजरंग बली जी अलग टॉपिक है, हुँ, ये अलग टॉपिक है। हुँ। देखिए कहते हैं अगर आप अगर विश्वास करते हो तो है, नहीं नहीं करते तो नहीं है। आप करते हो? हाँ, मैं करती हूँ। होता है ऐसा? बिल्कुल करती हूँ, बिल्कुल दिल से करती हूँ। और कई बार तो मेरे सपने में भी आई, मैं इतना ज़्यादा मानने लगी कि मेरे सपने में आने लग गए थे। तो मैं तो ये कि वो खड़ी हूँ, बस ये कि भी वो मेरे साथ है बजरंगबली, बस ठीक है चलते रहो। बातें करते हो उनसे? बातें तो ऐसे है लाइक जैसे फ्रेंड होते हैं ना, मैं कहीं भी एक्टिवा पे भी जा रही होती हूँ तो मैं बोलती हूँ भगवान आज तो ये हो गया, बचा लेना आज आप मुझे। आज मैंने इतने 30 के डंबल मारने, मेरे पीछे खड़े हो जाना। आज मैं 35 के डंबल के 10 रैप मारने, पीछे खड़े हो जाना मेरे। क्या बात है! मतलब मुझे सपोर्ट चाहिए पीछे से, मुझे ट्रेनर खड़ा नहीं करना, पीछे आप खड़े होने चाहिए। तो वो जवाब कैसे देते हैं फिर आपको? आप बातें करते हो, अपने सवाल भी पूछते हो उनसे? मुझे कई बार ऐसे लगता है जब मैं रैप मार देती हूँ, ठीक है, गुड, ओके, हो गया, शाबाश, चल। उनका आशीर्वाद आ गया। हाँ, बस चल ठीक है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा। फिर वीडियो बन जाती है, पोस्ट कर देती हूँ, लोग अच्छा बोलते हैं, अच्छा लगता है, वो भी पॉजिटिव फील होता है। तो मेंटली स्ट्रांग अपने आप को कैसे रखते हो आप? ये लोगों को लगता है कि स्पोर्ट्स है जो, चाहे वो कोई भी है, बॉडी बिल्डिंग है या आपकी जूडो है, लोगों को लगता है कि ये फिजिकल स्ट्रेंथ की गेम है। तो मेंटल हेल्थ को आप कैसे देखते हो? देखिए मेंटली स्ट्रांग कैसे करते हो अपने आप को? मेंटल हेल्थ बहुत ज़रूरी है। मेरे को तो मेरी मदर ही करती है मुझे, कसम से। मेरी मदर ने मेरे लिए जो किया है किसी ने आज तक नहीं किया है। हाँ, हर किसी की मम्मी अच्छी होती है, हर किसी के पास, लेकिन मेरे पास तो कसम से वो भगवान है, देवी है मेरे लिए। वाह जी वाह! कसम से देवी हैं वो मेरे लिए, मतलब सब कुछ है। मेरी माँ, मेरा बाप, मेरे भाई, सब कुछ, एवरीथिंग। इतना मेरे पापा और भाई का मैं नहीं बोलूँगी जितना मेरी माँ है। तो मैं भगवान से हमेशा यही बोलती हूँ कि आपने अगर मुझे कुछ दिया है ज़िंदगी में, एक अनमोल चीज़ दी है, वो है मेरी मम्मी। मतलब मेरे हर, मतलब आप सोचो उस टाइम पे जब मैं हॉस्टल में +1 में मैं हॉस्टल में गई, मॉडल टाउन जो हॉस्टल है, गुरुद्वारे के सामने एक कॉलेज है बहुत बड़ा, जी। तो वहाँ मेरा हॉस्टल था पहला। तो टिब्बा रोड से सोच लो, मेरी मम्मा 10 रुपए बचाने के लिए मुझसे पैदल मिलने आती थी। पैदल मिलने, इतने मतलब बस स्टैंड से कितने पुल आते रास्ते में, जी। पैदल मिलने आती थी। और मेरे पापा ने तो मतलब बोल दिया था ये हॉस्टल नहीं जाएगी, और जब मैं हॉस्टल चली गई 3-4 महीने बोला कि घर में नहीं आएगी ये। तो मेरी मम्मी चोरी छुप के मुझे मिलने आती थी क्यों वहाँ। नहीं आएँगे आप हॉस्टल से घर पे? पापा को ये था कि नहीं हॉस्टल में नहीं भेजना। मतलब ये है कि हमारे खानदान में आज तक कोई लड़की ने गेम नहीं की, बाहर नहीं निकली, ऐसे कपड़े नहीं पहने, घर के अंदर रही है, क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा है, हमारा हरियाणा से हूँ। तो पापा ने बोला कि नहीं जाएगी ये हॉस्टल, अगर गई तो ख़त्म है हमारी तरफ से। तो मम्मी ने पापा के ऊपर से होके मुझे भेजा। तो आज मैं जो भी हूँ ना, मेरी माँ की वजह से हूँ। तो पापा क्या क्या आज? पापा आज ठीक है, हाँ ठीक है। जब इटली खेलने गई थी, प्राउड मोमेंट था, उनका इंटरव्यू हुआ, अच्छे से बैठ के टॉर शोर में इंटरव्यू दिया उन्होंने। तो वो ये था कि हाँ सही किया, ये हॉस्टल चली गई मेरे से ऊपर होके। कई बार मतलब पेरेंट्स से ऊपर होके भी डिसीजन लेना पड़ता है। बहुत बार लेना पड़ता है, बल्कि और सबसे अच्छी बात तो ये है कि मेरी मदर उस टाइम पे थी। कई बार तो होता है ना, कई बार मम्मी बोल देती पापा की साइड लेके, हाँ नहीं नहीं जाना, तेरे पापा मना कर रहे हैं, ऐसे वैसे। लेकिन मेरी मम्मी ने मेरे लिए जो किया है, आई थिंक एक बात है कि
पहले स्टार्टिंग में ना मेरे मॉम डैड बहुत लड़ते रहते थे, शुरू में जब मैं हुई थी, मैं आई थिंक 3-4 साल की होंगी, तो बहुत लड़ते थे वो दोनों। तो मेरे जो बड़ी माँ जी हैं, मेरी ताई जी भी हैं, उन्होंने बोला कि इस पापा को, मम्मी को बोला कि पापा को छोड़ दे और दूसरी शादी कर ले। जी। और मेरी मदर ने, और कोई और लेडी होती उस टाइम पे शायद मुझे लगता है छोड़ के चली जाती, जी। अपनी लड़की को भी छोड़ के चली, भी मारते पीटते हैं। लेकिन मेरी मदर ने सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से मेरे पापा को नहीं छोड़ा, कि अगर मैंने अपनी बेटी को छोड़ दिया, इसके 100 तो बाप खड़े हो जाएंगे, 100 माँ खड़ी हो जाएंगी इसकी, ठीक है। ये हर किसी के बर्तन धो रही होगी, अगर मैं छोड़ के चली गई, मैं तो चलो शादी कर लूँगी, खुश रहूँगी, इसका क्या होगा। तो मेरी वजह से मेरी मम्मी आज तक, मेरे पापा थोड़े अजीब बिहेव करते हैं, बट उनकी आज तक मेरी मम्मी ने अपनी ज़िंदगी सारी दाव पे लगा दी सिर्फ मेरी वजह से, सिर्फ और सिर्फ मेरी वजह से। पर मेरे को इसकी बहुत खुशी है कि आप कदर करते हो। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। मैं तो सच में, वो कभी भी आते हैं, मम्मी तेरे पैर दबा दूँ, हम्म। पैर दबा दूँगा कि ना, हरियाणवी में कहते हैं ना, क्यों छोरिया के पैर नहीं दबाया कर दे। मेरे को हरियाणी भाषा बहुत अच्छी लगती है। पीछे ना सपना चौधरी जी आए थे, जी। तो मैं उनको बार बार बोल रहा था आप हरियाणवी में कुछ बोलिए, आप हरियाणवी में कुछ बोलिए। ऑल्दो लैंग्वेज तो सारी ही रिस्पेक्टेबल है, पर हरियाणवी भाषा सुन के स्वाद आ जाता है। हाँ। सीखूंगा मैं भी आपसे। जी, ज़रूर, बिल्कुल। मतलब वो तो यही हमेशा यही बोलती है कि भी मेरे लिए भी तो छोरा ही है। मेरा पहले बड़ा भाई था, उसकी डेथ हो गई थी, छोटा सा ही था वो, 2-3 महीने का होगा। तो मेरी मम्मी हमेशा मेरे लिए बोलती, मेरे लिए, उसका नाम योगेश था, मेरी मम्मी ये बोलती कि भी मेरे लिए मेरा छोरा तो ही है, मेरे खातिर। हाँ, भी जो तो मैं जड़ा तो ओड़ा मैं, जहाँ जहाँ तो जाएगी वहाँ मैं आ जाऊँगी। मिलना चाहूंगा मैं आपकी मदर से। वो क्या तो बोल रही थी मैं आऊँ, मैं कहा नहीं, आप रेस्ट करो, आप सो जाओ। वो लुधियाना में ही है? हाँ, आप इधर ही। शिफ्ट क्यों हो गए हरियाणा से पंजाब में? पापा के काम की वजह से, पापा को काम कुम का थोड़ा था, यहाँ पे कुछ हमारे रिश्तेदार भी रहते थे, तो बस उनके चक्कर में हम आ गए। अभी फिलहाल करंट सिचुएशन क्या चल रही है लाइफ की? अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है। किस दौर से गुजर रहे हो मेंटली? मेंटली अभी तो बहुत अच्छा चल रहा है, भगवान की दया से, सच में। अभी मैं इस स्टैंड पे आ चुकी हूँ कि मैं अपने घर का सारा खर्चा मैं उठा लेती हूँ, ठीक है। मम्मी को अगर कुछ भी ज़रूरत होती है, कपड़ों को लेके, घर में कोई ज़रूरत है, या किसी भी चीज़ को लेके, फर्नीचर का हो गया, सब मैं हैंडल कर लेती हूँ। प्राउड है आपको अपने खुद पर? मान है पूरा? हाँ, प्राउड तो है। और सबसे ज़्यादा प्राउड मोमेंट तब होता है जब आपके माँ-बाप आपको बोलते हैं कि शाबाश, कि थैंक यू बच्चे। तो पापा बोल रहे हैं? हाँ, पापा ठीक है, खुश है मेरे पापा साथ। क्यों डरते थे आपको हॉस्टल भेजने से? यही है कि भी नाक कटा देगी, होता है, हरियाणा वाले को होता है ये अंदर से। पंजाब में भी ये चीज़ होता है। आपको क्या लगता है उस चीज़ के लिए माँ बाप की सोच गुनहगार है या बच्चों का गलत रास्ते पे जाना गुनहगारी है? देखिए, दोनों चीज़ें 50-50 लगा सकती हूँ। माँ-बाप को डर भी जायज़ है, हम्म। बच्चा बिगड़ ना जाए, लेकिन बच्चे को कब तक आप सँभाल के रखोगे? वो जो आपके आपके संस्कारों पे डिपेंड है ना, आपने संस्कार कैसे दिए हुए हैं। अगर वो गलत चीज़ पे जाके भी सही पे आ रहा है, इट मीन्स कि उसके संस्कार अच्छे हैं, कि मैंने गलत चीज़ें सीखी हैं और अब मुझे पता है मुझे क्या करना है लाइफ़ में। और जिसे बिगड़ना होगा ना सर, वो घर में रह के भी बिगड़ेगा, बिल्कुल। घर में आप बैठे-बैठे बिगड़ेगा। आपने अपने आप को कैसे बचा के रखा? कौन सी स्ट्रेटजी आपने अपनाई जो अपने आप, मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगती है किसी भी इंसान की, जो वो अपने गोल की तरफ ध्यान नहीं छोड़ता। देखो ज़िंदगी में सब कुछ ज़रूरी है, आशिकी भी ज़रूरी है, जो जो आपका मन है, पर जो आपका मेन गोल है अपने पैरों पे खड़े होना, चाहे वो एक अमीर बाप की औलाद है, चाहे वो एक मिडिल क्लास घर से है, चाहे वो एक ज़रूरतमंद घर से है। मैं चाहता हूँ कि सब अपने पैरों पे खड़े हों, कि कल को लाइफ में कोई भी सिचुएशन आए किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। खासकर जो आज का ज़माना चल रहा है, पिछले ज़माने में तो लड़कियां देखती थी कि पढ़ा लिखा लड़का हो, पैसे कमाता हो। आजकल लड़के भी देख रहे हैं, मानते हो? बिल्कुल, बिल्कुल। लड़के भी देखते हैं कि लड़की क्या करती है, हुँ। कि एक और खर्चा तो नहीं जुड़ जाएगा घर पे आके। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? देखिए, सिंपल सी चीज़ है, अभी मैं जिस रिलेशनशिप में हूँ, साथ में जो मेरे पार्टनर है, ऑब्वियसली हर किसी को होता है कि यार, पहले ये ऐसे होता था कि भी लड़का ऐसा होना चाहिए, कमाता हो, पैसे हों उसके पास, अच्छा खानदान हो। लेकिन आज के टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों को सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि लड़की कमाती कि नहीं कमाती, वेल सेटल्ड है कि नहीं है। ज़रूरी है ये चीज़, बहुत क्यों? ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अब आपको पता नहीं है कि ससुराल में जाने के बाद बहुत सारी डिपेंड हो जाती लड़कियां लड़कों पे, घर में बैठे बैठे, कि भी हाँ मुझे खर्चा दो। खर्चा दो, पैसे दो। उसके बेचारे के ऊपर क्यों इतना सिर पे उसके हथौड़ा मार रहे हो? तुम्हारे जेब में भी होना चाहिए कुछ ना कुछ। आपने खुद अपना पार्टनर ढूंढा है? जी। कैसा लग रहा है फिर? माँ बाप कैसे हैं आपके? खुश हैं? बहुत खुश है घर सब। पे कलेश तो नहीं नहीं हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं, मेरे घर पे तो बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरे मतलब कि रिश्तेदारों में हुआ होगा थोड़ा बहुत, पर घर पे नहीं क्यों? हुआ। रिश्तेदारों में ऐसा है कि राजपूत है लड़का, मैं ब्राह्मण हूँ। ओके। हाँ। ये कब खत्म होगी चीजें? ये तो बहुत मतलब, उसमें ऐसा होगा, तुझ मतलब हमारे राजपूतों को रांगड़ बोलते हैं। मुझे फ़ोन आता है, इतना रांगड़ ही पाया था। मतलब इतना रांगड़ ही पाया था, मतलब फ़ोन वीडियो कॉलिंग कर लो गाँव में, तो जो रांगड़ की घरवाली, मतलब राजपूत की घरवाली होती है, उसको रांगड़ी बोलते हैं। जंग रांगड़ी। रांगड़ी। मेरे को बोलते हैं, हाँ बोल रांगड़ी। मैं चुप, मैं क्या ही बोलूँ अब, बड़े हैं ना, कुछ नहीं कह कहाँ सकते। से मिले आपको आपके?
हम मिले थे। मेरा हिंदी में इतना हाथ टाइट है ना कि जब मैं पंजाबी च बोलना आ जाता मैं खुल के बोल सकता। कोई बात नहीं, आप बोलिए, मैं समझ जाऊंगी। नहीं, मैं हिंदी में बोलूँगा, कोई बात नहीं। वो मुझे पहले से जानते थे इंस्टाग्राम पे 6-7 महीने से, और मैं उनको 1-2 महीने से, हम एक कंपटीशन में मैंने उनको देखा था बस वो ऐसे। क्या करते हैं? प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर है, क्या बात है! और क्या बोलते हैं, प्रेप कोच भी है, ऑनलाइन ट्रेनिंग भी देते हैं, फॉरेन के उनके वो भी काफ़ी। हरियाणा से ही हैं? हाँ, वो हरियाणा से, फरीदाबाद से। ओके। तो हम ऐसे मिले थे, मैंने उनको देखा था, उनका कंपटीशन था संग्राम क्लासिक, तो वहाँ पे इतने सारे बच्चे हैं, सबने कपड़े पहने हुए हैं। एक वो अकेला पर्सन है, चड्डी में खड़ा हुआ है। तो मैं सोच रही हूँ, इसको क्या मौत पड़ रखी है, मतलब ये अकेला खड़ा है ऐसे। चलो उस टाइम पे इतना ध्यान नहीं दिया क्या ही होना क्या नहीं। तो हम फिर उसके बाद धीरे-धीरे लाइकिंग बढ़ने लगी, मैंने रील इंस्टाग्राम देखा, तो हम मिले शेरू क्लासिक में। तो उनका एक साथ में उनका जो बूथ है, हम एक ब्रांड की तरफ से स्पॉन्सर्ड है, मेट्रो फार्मा की तरफ से, वो अपने दूसरे ब्रांड की तरफ से। तो तब वहाँ जाके मैंने अपनी कुछ सहेलियों को बोला, मैं ऐसे-ऐसे बात है, सिंपल सी, सीधी-सी बात है, अभी मेरे को वो लड़का पसंद है ऐसे। तो उन्होंने जाके बात की है। सीधे? मैंने नहीं बात की बिल्कुल जी। भी। उन्होंने मेरे को बोला, प्रिया तू फ़ोटो खिंचवाने तो जा। हमने फ़ोटो खिंचवाई, और उसके बाद मुझे लगा कि अब क्या होगा, अब इसके बाद क्या है? हुँ। फिर उस मेरी सहेली ने जाके उसका नंबर लिया, ऐसे-वैसे बात हुई। तो अभी ऐसा है कि बहुत लोगों ने हमें बताया कि प्रिया बच के चलना, थोड़ा-सा रिलेशनशिप है ना? तेरे फॉलोवर्स ज़्यादा है, क्या पता तेरे फॉलोवर्स की वजह से वो हाँ कर दी हो, या अच्छा! मैंने प्रपोज़ किया था वैसे तो। ओके। तो कहते भी क्या पता तेरे फॉलोवर्स की वजह से हाँ कर दी हो, उसके फॉलोवर कम है, थोड़ा देख के, ऐसे बहुत लोगों ने बोला, बहुत लोगों ने। लेकिन डे बाय डे जैसे-जैसे मैंने उस इंसान की एफर्ट्स देखे, मेरी लाइफ़ को लेके, मेरी चीज़ों को समझना, मेरी खुशी को अपनी खुशी बताना। अगर मैं मेरी लाइफ़ में कोई भी आज भी, बल्कि मैंने बताया कि आपके साथ मेरा पॉडकास्ट है, तो बेस्ट ऑफ लक बच्चे, जी। बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, है ना? तो खुशी होती है कि आप अभी तो मुझे ऐसे फ़ील होती है, आई एम वेरी लकी, मेरे पास बहुत अच्छा इंसान है। वो समझता है मुझे, फाइनेंशियली भी हेल्प करता है। जब भी मैं उसे बताती नहीं हूँ, फट से अकाउंट में पैसे भेज देगा कि ये ले, तुझे ज़रूरत है ना, अभी तू रख। अब कभी माँगता भी नहीं है, हुँ। ऐसे है। और उसकी फैमिली तो मतलब टचवुड, मेरी बहुत अच्छी किस्मत है इस चीज़ में कि उसकी फैमिली बहुत अच्छी है। आप मिले उनको? सबसे शादी मिले। कब कर रहे हो फिर? शादी अभी नहीं अभी हम सोच रहे हैं, एंगेजमेंट के बारे में सोच रहे हैं। उनके घर में थोड़े रूल रेगुलेशन है, राजपूतों के घर में थोड़े होते हैं, वो राजस्थान साइड की उनकी मदर। तो उनके घर में तो ऐसा है कि हम यूट्यूब पे अपना शुरू करने वाले दोनों जने व्लॉगिंग का, तो उन्होंने बोला है कि अभी जब तक एंगेजमेंट नहीं होती तुम लोग अभी साथ में नहीं रह सकते, वरना हम 2 महीने लिविंग में रहें एक दूसरे के साथ, ये देखने के लिए कि हम रह सकते एक दूसरे के साथ कि नहीं, क्योंकि शादी कोई छोटा-मोटा डिसीजन नहीं है। आजकल ये बहुत चल रहा है कि लिविंग रिलेशनशिप, हुँ। इसका क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? क्योंकि ये बहुत तो गोरों से आया ना हमारे पास। और बहुत अच्छा है, ये होना भी चाहिए। मैं सबको बोलूँगी, क्योंकि ये देखिए, आप देख के आपको महीना 2 महीना अच्छा लगेगा लड़का, लेकिन आपने पूरी ज़िंदगी बितानी है उसके साथ, हुँ। ठीक है? ये डिवोर्स वाला सिस्टम हाँ, हिंदुओं में नहीं होता है, ठीक है? 7 फेरे हो गए तो हो गए। आप पहले उससे पहले ही देख लो क्या करना है, क्या नहीं करना है। डिवोर्स वाला तो किसी धर्म में नहीं होता, पर हो बहुत ज़्यादा हाँ, रहे हैं। बहुत ज़्यादा रहा है, हर चीज़ में मार-पिटाई, फिर झगड़े होते हैं, फैमिली में क्लेश होता है। जितनी जल्दी लाइकिंग होती है, उतनी जल्दी डिसलाइकिंग होती है। बिल्कुल, जितना बिल्कुल। जल्दी दिल आता है, उतना जल्दी दिल भरता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोगों ने लिविंग में रहने का डिसीज़न दोनों ने लिया कि ठीक है रहते हैं। हम रहे, बल्कि हम मुझे ऐसा लगता है कि हम पहले एक-दूसरे को जितना नहीं जानते थे, हमने लिविंग में रह के एक-दूसरे को जाना है। एक-दूसरे की कमियाँ पता लगी है, हमें एक-दूसरे की सिचुएशंस पता लगी हैं। एक दोनों काम कैसे करते हैं एक-दूसरे के साथ, बोलने-चालने, एक होता है ना आप फ़ोन पे बात करो, हाँ जी, आप करके, फिर तू पे आ जाता है हर चीज़ें। हुँ। सब चीज़ें पता लगने लग जाती है। उसके बाद आपका अभी आप प्योर तू पे आ गए कि नहीं? हाँ, आ चुके हैं। तो अभी आपका रिलेशन प्योर हो जाता है, फिर एक मिरर टाइप हो जाता है, सब कुछ साफ है, आपको पता है सामने वाला ऐसा है, उसको पता है मैं ऐसी हूँ। और उनके घर पे तो वो पहनते हैं, पोशाक होती है, घाघरा होता है, जी। कुर्ती है और ऊपर चुन्नी है। तो मेरी लाइफ तो मतलब ऐसे से ऐसे होने वाली है। तो आप वो सब कुछ करने के लिए तैयार मैं हो? वो उस पर्सन की वजह से करने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, आप भी वो सारा कुछ ये जो स्पोर्ट्स कर रहे हो, ये तो करोगे कि नहीं, ये हाँ, भी छोड़ ये दो? करूँगी बिल्कुल। उनके घर में अलाउड नहीं है कि फीमेल्स को बाहर जाना, दूध लेने भी नहीं जाती हैं, यहाँ तक कि लड़ाई हो रही है, अंदर चलो, ऐसे ये ये इसको आप कैसे देखते हो चीज़ को? मैं ऐसे रिस्पेक्ट करता हूँ हर धर्म की। हुँ, हुँ, हुँ। मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है। मैं खुद हिंदू हूँ, हुँ, सनातनी हूँ, हुँ। पर मैं किसी और धर्म के बारे में अगर कोई गलत बोल रहा है, मैं खुश नहीं हो सकता देख के। हाँ, बिल्कुल। और मेरी स्ट्रैटेजी थोड़ी-सी ज़िंदगी की और है। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? या हम इस मुद्दे पे बात ना करें, आपने उस घर जाना है, आपका नहीं, नहीं, पर्सनल बिल्कुल, ओपिनियन। कुछ ऐसा नहीं है। देखिए, हर किसी के घर के रूल रेगुलेशन अलग है। हम किसी को ये नहीं बोल सकते तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? नहीं, नहीं, रूल्स की ठीक है, घुटन नहीं महसूस होगी लड़की को कि अ, अपने शौक मार के, जैसे अब लड़की आपने स्पोर्ट्स करना चाहती थी, आपकी मदर ने आपका साथ दिया। तो जो घरों में आज भी लड़कियों को अंदर ही रखा जाता है, फेस कवर करके रखना है, बाहर नहीं जाना, हुँ। तो उनका भी तो कुछ दिल करता होगा करने को? ये जब बात हुई थी तो उनकी मम्मी ने यही बोला था कि
ये क्या करेगी आके, मतलब कि खाना बना लेगी, तुझे खाना दे देगी ये, हैं भी, मतलब काम कर लेगी घर का, ये क्या नहीं कर पाएगी। तो जब लिविंग में देखा कि जो जस्सी है उन्होंने देखा लिविंग में कि मैं काम भी कर लेती हूँ घर का, जिम भी कर लेती हूँ अच्छे से, सब कुछ कर लेती हूँ, तो उसने घर पे बनाया सबको कि हाँ ये अच्छी लड़की है, सब कुछ हैंडल कर लेगी हर एक चीज़ में। बाकी सब सिचुएशंस के ऊपर है, उन लोगों ने ये भी एक्सेप्ट कर लिया, हाँ ठीक है इसको जिम जाना है, जिम भेज देते हैं, कोई बात नहीं, घर से बाहर तो जाना वहां पर आप स्पोर्ट्स वियर जाके जब घर से बाहर जाओगे तो बाकी लेडीज उनको तिलिये नहीं लगाएंगी कि ये क्या है? देखिए, सब बोलेंगे, अभी भी बोल ही रहे हैं उनको सब, ठीक है, बट एक होता है ना कि हाँ चलो ठीक है हमारे घर में आएगी। बल्कि जो मम्मी जी हैं बहुत अच्छी हैं, वो सपोर्टिव है बहुत ज़्यादा, उन्होंने बोला कि ठीक है कोई ना, तू चले जाना जिम अगर तुझे जाना है तो, बट ये है कि कपड़े तो जो घर में पहने वही पहन के रास्ते में चेंज कर अपने कपड़े। हाँ जिम जाकर। हाँ, जिम जाके अपने कपड़े चेंज कर तो ले। फिर इंस्टाग्राम पे? इंस्टाग्राम पे वही रहेगा सेम जैसे चल रहा है उनको, कोई हाँ उन्होंने सारा इंस्टाग्राम देखा है अरे मेरा। आजकल की रिलेशनशिप कैसी चल रही है मुझे तो पता ही नहीं था। नहीं उन्होंने बल्कि बोला जैसे चल रहा है चलाओ अपना, वैसे करके तो जो आप सब कुछ रेडी हो कुर्बानी देने के लिए? हाँ वो भी रेडी है बेचारा, और सब कुछ। वो उनकी क्या कुर्बानी होगी, उनकी तो कोई कुर्बानी नहीं है। उन्होंने आपको अपने घर लेके जाना, आपने तो नहीं जाना। हाँ ये भी है, बट सिंपल सी बात तो ये है कि आपको रिलेशनशिप में अपने अंदर चेंजेस लाने पड़ते हैं, ज़रूरी होता है, क्योंकि एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। हाँ ऐसे नहीं बोल सकती हाँ मैं लड़की हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, मैं एक वो वुमेन प्ले कार्ड नहीं कर सकती। हाँ लड़की हूँ, मुझे पता है मुझे करना है, मेरी मम्मी ने भी किया था। मेरी मम्मी ने तो काम भी नहीं आता था घर का, रोटी भी नहीं बनानी आती थी, मेरे पापा ने सिखाया मेरी मम्मी को। अच्छा जी। हाँ मम्मी ने तो सारा मर्दों वाला काम किया है, घास काटना, बुग्गी जोटा करना, गोबर लेके जाना, सब मर्दों वाला। ये काम मर्द औरत वाला क्यों होता है, सब बराबर का क्यों नहीं होता कि क्योंकि जैसे? हरियाणा में मर्द नहीं करते गोबर उबर वाला काम, हम्म। वो ज़्यादा भैंसों को संभालना, चारा देखना, ये देखना वो करते हैं। लेकिन मेरी मदर ने ये सारा किया है, तो रोटी सब्जी भी नहीं आती थी मेरी मम्मी को। हरियाणा के बारे में और बताओ, मैं पंजाब में मेरा जन्म हुआ है तो मैं हरियाणा के बारे में, उसके कल्चर के बारे में जानना चाहता हूँ। हरियाणा मतलब बहुत खूबसूरत, एक एक सुकून वाला, शांति वाला है एक राज्य। और हरियाणा में तो मतलब लोग आपको अपनापन फील कराएंगे भी। हाँ कोई भी पूछ लेगा, गाड़ी में आप बस में जा रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे खासकर तो हरियाणा की बसें बहुत अच्छी लगती हैं। सरकारी? हाँ हरियाणा रोडवेज एक अपना, कोई भी रिश्तेदार मिल जाता है आपको, टिकट फ्री हो जाती है। अच्छा, टिकट फ्री हो जाती फ्री हो है? जाती है, हाँ भाई कड़ा जाओगा। हाँ कड़ा जाओगी, बोल ओड़ा छोड़ना है, ठीक है छोड़ जी। दूंगा। अच्छा जी। ऐसे होता है, रास्ते में कहीं भी हाथ करके भाई रे ओड़ तक छोड़िए, मैं रास्ते तक ठीक है छोड़ दूंगा। ऐसे होता है वहाँ पे। तो मतलब आप किसी के घर में जाके डोलू लेके चल जाओ लासी लेने के लिए, हाँ ताई लासी दे दे। पंजाब वाले दूध देते हैं। ताई लासी दे दे, ताई दूध दे दे, मिल जाता है बड़े आराम से। तो पंजाब कितनी देर से हो आप यहाँ पे? आप पंजाब मुझे हो गए मैं 5 साल की थी, आज मैं 24 साल की हूँ। लुधियाना आ गए आप? हाँ लुधियाना। तो जाते रहते हो उधर भी इधर भी? हाँ जाते रहते। ज़्यादा आप अब लुधियाना ही रहे हो? हाँ इधर रहते, काम की वजह से अब काफ़ी टाइम से नहीं जा हो रहा। क्या एक्सपीरियंस रहा अब आपका लुधियाना में पंजाब में आकर? क्या फ़र्क है हरियाणा और यहाँ पे? क्या मिस कर रहे हो? क्या क्या चीज़ यहाँ पे अच्छी है जो वहाँ पे नहीं है? प्योरिटी, एक प्योर होता है ना, प्योर मतलब हरियाणा में आज भी आपको असली दूध मिलेगा। आज भी हुँ। आपको लस्सी वही मिलेगी जो आपको पहले 10 साल पहले मिल रही थी। ठीक है? यहाँ पे डेयरियों में से दूध लेना पड़ रहा है, ना तो उसमें मलाई आती है, हुँ। ना घर पे आप घी बना सकते हो देसी घी, वो आपको डब्बे वाले खाने पड़ रहे हैं। कोई फ़ायदा ही नहीं उसमें। जो मेन देसी घी है वो तो हरियाणा से ही मिलता है आपको। बहुत लड़कियों का मानना है कि हम जिम इसलिए नहीं जाती कि हमारी बॉडी बन जाती है। हुँ। हम बॉडी नहीं बनाना चाहते, हम डौले नहीं बनाना चाहते। इसके बारे में आप कैसे देखते हो? देखिए, मसल ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी होती है हर किसी के लिए, चाहे कोई भी लड़की हो, ठीक है? बाकी मिथ बना हुआ बॉडी चौड़ी हो जाएगी, ये हो जाएगी, वो हो जाएगी। मर्दों वाली चाल हो जाएगी, हाँ, लड़कियाँ नहीं जिम जा सकती। ऐसे कुछ हो, कल को मान लो बाई चांस आपको किसी एक ही लड़के ने घेर लिया, हुँ। आप में इतनी भी हिम्मत नहीं, आप एक लड़के का सामना कर लो। सिंपल सी बात जी, बिल्कुल। है ना? कि भी तुम बाहर जा रहे हो, पतली सी हो तुम, ठीक है? तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, ज़रूरी नहीं है मसल्स गेन करना है, अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाओ, बॉडी में ताकत बढ़ाओ। ज़रूरी नहीं है डोले-शोले लेके घूमना होता है। कल को एक लड़का तुम्हें घेर लेगा, तुम्हारे हाथ उठाने तक तुम्हें हिम्मत नहीं होगी, क्या ही कर लोगे फिर तो? आपको घेरा किसी लड़के ने कभी? मेरे को आज तक नहीं घेरा किसी ने भी। तो वैसे आपने पीटा किसी लड़के को? मैंने पीटा भी नहीं, मैं अपने भाई को पीट देती हूँ। वो फिर तो आपका जोर घर पे ही चलता है फिर। मेरे को टकरा ही नहीं कोई आज तक ऐसे, कोई मिला ही नहीं है कि कोई पंगा नहीं लेता? कोई पंगा ले ही नहीं, किसी ने आज तक कहा ही नहीं ऐसा कुछ भी ऐसे। कोई कमेंट्री कोई पास नहीं करता जिसमें आपको लगा हो कि इसकी जुत्ती परेड होगी अब? मैं अभी ना कुछ दिन पहले ही जिम में एक आदमी था, मुस्लिम था वो, हुँ। मैं सही बताऊँ तो घूर रहा था तब से मेरे को। मुझे चाहिए वर्कआउट में, मतलब मेरे को अनकंफर्टेबल फील नहीं होना, वरना मैं वर्कआउट अच्छे से नहीं कर पाऊंगी। मुझे चाहिए, मैं अपनी बॉडी को तोड़ के घर लेके जाती हूँ, मतलब मेरे थकान मेरी इतनी होनी चाहिए कि मैं सोऊं तो मुझे मेरे पैर दर्द होने चाहिए। बिल्कुल। तो वो मेरी तरफ घुरी जा रहा है। मैं ना बैक लगा रही थी, मैंने छोड़ा डंबल वहीं पे, मैं गई उसके पास, ना भाई साहब क्या दिक्कत है? हुँ। मैं ना अनकंफर्टेबल हो रही हूँ वर्कआउट करने में, मैं क्या अभी मुझे दिक्कत हो रही है थोड़ी सी, तो आप बार बार इधर देख रहे हो,
कहता मैंने तो देखा नहीं आपकी तरफ। मैं देख रही हूँ, मैं कहा मैं अनकंफर्टेबल हो रही हूँ बहुत ज़्यादा। हम्म, तो वो बेचारा चुपचाप करके अपना साइड चला गया, उसने दोबारा मुड़ के नहीं देखा मेरी तरफ। ये अच्छी बात होगी फिर। बहुत अच्छी बात है, आपको बोलना चाहिए उसी वक्त ही जाके, जहाँ आप अनकंफर्टेबल फील करो ना, बोल दो जाके सीधा। अच्छा, जब आप इंस्टाग्राम रील्स वाली लड़कियां देखते हो जिनके रातों रात मिलियन फॉलोअर्स, उनको देख के जेलस होती है? कभी नहीं, कभी भी नहीं, बल्कि लोगों पे नहीं आता कि लोग क्या कुछ देखना चाहते हैं? नहीं, नहीं, कभी नहीं आता। मैं बस जब मुझे कुछ अलग ही वीडियोस दिखती हैं लड़कियों की, हम्म, हिप्स को लेके, ब्रेस्ट को लेके, तो मुझे ये होता है कि क्या कर रही है यार ये, मतलब इसको ऐसे आसान तरीका नहीं है वायरल होने का ये? आसान तरीका भी है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम अपना खुद का, आगे तुम जाके क्या ही करोगे? तुम एक बैठ के जब शांति से तुम बैठते हो, तुम सोचते हो, तो तुम्हें फील नहीं होता यार मैंने क्या पोस्ट कर दिया, एक गलत चीज़ पोस्ट कर दी। मेरे पापा भी देखेंगे इसको, मेरी मम्मी भी देख सकती है, क्योंकि मैं जो वीडियो डालती हूँ मेरे पापा की फैक्ट्री में सब देखते हैं। हम्म, तो मेरे पापा को सब बोलते हैं कि लड़की आपकी बहुत अच्छी कर रही है, बहुत अच्छा कर रही है आपकी लड़की। तो मुझे ऐसे फील होता है कई बार कि यार ये क्या है, मतलब मैं कई बार मैं सोचती हूँ मैं क्या हो गया लड़कियों को यार, क्या हो गया? कुछ भी डालो, मैं ढंग का डालो, सूट सलवार की फोटो डाल लो, हैं खेतों में चलते हुए फोटो डाल लो। कितनी लड़कियां बनाती हैं आजकल, मैंने देखा है। तो ऐसे डाल लो, पुशअप्स की वीडियो डाल लो, कुछ भी करके डालो। आप कितने पुशअप लगा लेते हो एक बार में मैंने अभी विदाउट ब्रेक? 60। 60 विदाउट ब्रेक? क्या बात है, फिर तो आप हार गए मेरे से। 100 लगाऊंगी, अभी मैं रोडीज की तैयारी कर रही हूँ। अच्छा जी। हाँ, तो अभी फिर मेरा टारगेट है 100, 200, 100। रोडीज में क्यों जाना चाहते हो? मेरे को ये है कि मुझे आगे बढ़ना है, चाहे रोडीज किसी भी चीज़ का लगा लो, या साफ शब्दों में बोलूँ तो एक सहारा लगा लो रोडीज को, तो मुझे लाइफ में आगे बढ़ना है, वो भी अच्छे लेवल पे होके। क्या मुकाम है आपका, पैसा कमाना? पैसे कमाना नहीं, मुझे एक ये दिखाना है कि इंडिया में भी ऐसी लड़कियां हैं, हम्म, एक अच्छी लड़कियां भी हैं, गेम को लेके भी, अपनी फिटनेस को लेके भी, हरियाणा से भी है, बैकग्राउंड एरिया भी ऐसा है। तो मुझे वो दिखाना है कि भी हाँ लड़कियां भी हैं ऐसी कुछ आप इंडिया। अपनी मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए क्या करते हो? मैं मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए भगवान के पास जाती हूँ। भगवान को बैठ के बोलती हूँ। वो क्या नाम है, खान पैनी वाले जो सिंगर है, उनका एक गाना है जिसमें एक लाइन है कि जेड़ा बंदा मतलब रब नु आके दसदा है गल, एक लाइन है ना। तो वो लाइन बहुत, मैंने वो बहुत ध्यान से सुनी थी। भगवान को आके आपको सब कुछ बोलना है, रात को पूरे दिन में जो भी हुआ है आके बोलना है भगवान को कि आज मेरे से ये हो गया, मेरे से वो हो गया, मेरे से ये हो गया, आज मुझे ये बोल दिया। अपना दुख सुनाना है। अपना दुख बोल दो, वो सुनने के लिए बैठे हैं, बोलो उनको, और वो सुनते हैं। जब तक उनको जाके नहीं बोलोगे वो कैसे सुनेंगे भाई? उनको बोलो कि ये हो गया आज, तो आपने ये करना है, मुझे ये चाहिए आपसे, बताओ दोगे ये? तो मेरा ही ऐसे होता है, मैं बिल्कुल फिट रहती हूँ। मैं अपनी मम्मी को भी समझा देती हूँ, कई बार मम्मी को भी बोल देती हूँ मम्मी ऐसे ऐसे हो गया आज ऐसे। तो मेरी मम्मी इतनी, मतलब मेरी मम्मी के अंदर पेशेंस इतने ज़्यादा है, हद से ज़्यादा। वो मुझे बहुत मोटिवेट करती है, मतलब मेरी लाइफ में मोटिवेट का कोई ज़रिया नहीं, बट वो एक है एक लेडी, मतलब मुझे हर टाइम हर वक्त मेरे पीछे, मेरी रीढ़ की हड्डी है वो नहीं है तो लाइफ में मैं कुछ भी नहीं हूँ। वो खत्म, मैं खत्म। स्पोर्ट्स में मैम पीछे जैसे वो चला था हरियाणा में कि धरना लगा था एक लीडर के खिलाफ, उसको आप कैसे देखते हो? स्पोर्ट्स में ये चीज़ें होती हैं जिसके खिलाफ वो धरना लगा है कि लड़कियों को ईव टीजिंग का सामना करना पड़ता है, लड़कियों का लोग फ़ायदा भी उठाते हैं अगर किसी स्पोर्ट्स में कि चल मैं तेरे को आगे करता हूँ पर उसके पहले ये शर्तें रखनी पड़ेंगी? ये चीज़ें हैं, सच बोलूँ तो हम्म, मेरे साथ भी हुई हैं ये चीज़ें। अभी मेरे जूडो के ही हैं, फेडरेशन के ही हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम आपके जूडो के फेडरेशन के जो पंजाब के हैं उनसे बात करते हैं, आपकी गेम को लेके या आपकी डाइट को लेके आपको स्पॉन्सर करेंगे वो। तो मैंने जब उनसे इंस्टाग्राम पे बात की तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चन कैसे किए, आपका बीएफ है, आपका ये है वो है, बताओ, अब हम्म, बताओ क्या करे, लड़की क्या करे, क्या कर सकते हैं? मैंने स्क्रीनशॉट लेके रख लिया, मैं किसी दिन मेरे को टक्कर गया मैं उसके बाद कुछ नहीं छोड़ा? मैं पकड़ूंगी जिस दिन कोई कंप्लेंट नहीं की उसकी? उसकी। मैंने उनको बताया बजाज वालों को, मैं कहा ऐसे ऐसे बात है। तो उन्होंने बोला प्रिया आप बात मत करो इनसे, कुछ भी पीछे हट जाओ। रिलेशनशिप का क्या लेना देना स्पोर्ट्स से? डिस्ट्रैक्शन है रिलेशनशिप, क्या मेंटेन करना आना चाहिए, सब कुछ चल जाता है? देखिए आपके पार्टनर पे भी डिपेंड होता है हम्म, कि वो आपको कैसे पुश करता है। एक तो है आप पूरा दिन आशिकी पे लगे हो, बातें करने हाँ, लगे हो। सुबह खाना खा हाँ लिया। हाँ मेरा बाबू ठीक है। एक है कि मैंने पुशअप्स लगाए इतने, मैंने वीडियो भेजी, वीडियो पोस्ट की, उसने कमेंट किया वेरी गुड शाबाश, मुझे 100 चाहिए तेरे से। मैंने भी पुशअप्स की वीडियो डाली थी, नीचे कमेंट किया था बाबा मुझे 100 चाहिए तुझसे पुशअप्स। जी। तो ये एक होता है कि हाँ यार कि पुश करने वाला पर्सन है मेरे पास, और वो आप मानोगे 300 के करीब डेडलिफ्ट लगाता है। हम्म, 300 के करीब डेडलिफ्ट लगाता है। आप जी। खुद सोचो कि मैं सोचती हूँ हद है यार, मैं 150 160 पहुंची हूँ अभी तक, ये 300 पे पहुंच गया। तो वो हमें हमारे बीच में यही बातें होती रहती ज़्यादातर कि हाँ आज मैंने इतना वेट मारा, आज मुझे इतना वेट मारना है, तूने कितना मारा, 30 के डंबल मारे तूने, अच्छा 35 के डंबल, ये बातें होती है हमारी। मैम रिलेशनशिप की ज़रूरत क्यों होती है ज़िंदगी में? आप रिलेशनशिप से पहले कैसे थे, बाद में क्या फ़र्क पड़ा, क्या आपको फ़ायदा हुआ, क्या लगता है आपको? डिफरेंशिएट करो अगर दोनों ज़िंदगियों में, पहले वाली और अब वाली। कुछ लोग अकेले ही बहुत खुश हैं, कुछ लोग रिलेशनशिप आप में आकर भी रो रहे हैं,
आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? देखिए लाइफ में सिंगल हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर रिलेशनशिप में हो तब भी बहुत अच्छी बात है, बस आपका पार्टनर हमसफ़र अच्छा होना चाहिए। ज़्यादा अच्छी बात कौन-सी है दोनों में से? दोनों में दोनों ही बातें अच्छी, मैं सीरियसली बोलूँ तो। अब मैं आपको बोलूँ, एक होता है ना कि आप गाड़ी में किसी के साथ हो, जा रहे हो लंबा सफ़र, आपके साथ हमसफ़र अच्छा होगा ना, आप पूरी दुनिया पैदल चल लोगे। क्या बात है! सच में अगर अगर आपके साथ एक इंसान अच्छा खड़ा है, सपोर्टिव खड़ा है, वो स्टैंड ले रहा है कि उनकी फैमिली में मानने वाला कोई भी इंसान, पर मेरे लिए अपने माँ बाप को रुलाया, सबको रुलाया, भाई को रुलाया, मेरा स्टैंड लिया, तो इससे बड़ी बात क्या है? मेरे माँ बाप से मिल के गया, अभी अभी मुझे एक पेट गिफ्ट किया है, छोटा सा हुँ, रामू। अच्छा। छोटा सा, मुझे नहीं पता था कभी वो पंजाब आएंगे, लेकिन मेरे लिए आए वो यहाँ पे स्पेशली, मेरे मम्मी पापा से मिले, सबसे मिले, मेरे भाई से मिले, है तो सबको खुशी। तो यही है कि सिंगल हो तो भी ठीक है, अगर डबल हो तो भी ठीक है। फ़ायदे क्या हैं डबल के? रिलेशनशिप के फ़ायदे क्या हैं? फ़ायदे यही है, एक आपको सुनने वाला पर्सन मिल जाता है। वो तो भगवान है हमारे पास। तो अब ये होता है कि आपका माइंडसेट होता है कि हाँ, ये एक पर्सन है मेरे पास, चूज़ कर लिया, मैं अब इस चीज़ से भी फ्री हूँ कि मुझे अब चूज़ करने की किसी को ज़रूरत है। सिंगल वाले के होते हैं, पता नहीं कौन मिलेगा, कैसा लिखा होगा, कैसा नहीं होगा। मेरे पास ये है कि हाँ, ठीक है, मुझे पता है मुझे किसके साथ शादी करनी है, मेरे पास है। अभी आपका आगे क्या मकसद है ज़िंदगी का? क्या करना चाहते हो आप? बस ये है, मुझे अपनी मम्मी के लिए काम करना है, बहुत नाम कमाना है कि मेरी मम्मी को जितना मेरे बारे में सुना है, वो लोग मेरी मम्मी को बोले कि तूने सही किया इसको बाहर भेज के। मुझे वो करना है बस। आपको अपनी पहली कमाई याद है? पहली कमाई मेरी थी, स्कॉलरशिप मिली थी मुझे सरकार की तरफ से। आई थिंक 18 में, शायद 2018 में मुझे स्कॉलरशिप मिली थी 28,000 की। तो उसमें से मैंने, मेरे पास फ़ोन नहीं होता था, छोटा सा फ़ोन था टाइपिंग वाला उस टाइम पे। तो मैंने क्या किया, फ़ोन के लिए पैसे रखे, बाकी घर पे भेज दिए अपने सारे, हुँ। कि ये लो जी मेरे पैसे, ऐसे करके। फिर तो मैंने सरकार से बहुत पैसे खाए हैं फिर उसके बाद और खाने भी चाहिए। क्यों खाए हैं? कैसे खाए हैं? स्कॉलरशिप ले लेके। देती है सरकार? हाँ, देती है। वो बहुत सालों बाद देती है, और मैं तो हाथ जोड़ के उस दिन शुक्रिया अदा मनाती थी, शुक्र है ये फॉर्म आए हैं, स्कॉलरशिप के लिए पैसे निकले हैं। तो मैंने खाए हैं, 1.5-2 लाख तो खाए हैं सरकार की तरफ से। अरे! हमारा ही पैसा है वो टैक्स का। किसी ना किसी वे में गया हुआ है। और जो स्पोर्ट्स वाले लोग ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं, आप उनको क्या कहना चाहते हो कि कहाँ से शुरू हों? जिनके पास फाइनेंशियल फंड्स भी नहीं है, मॉम सपोर्टिव भी नहीं है उनके पास, वो क्या करें? देखिए, ज़रूरी नहीं है आपको स्पोर्ट्स में आगे जाना है, बहुत सारी लाइन्स है आगे जाने के लिए। बस मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, रुकना मत बस लाइफ में कभी भी। कहते हैं पानी ठहर जाता है, उसमें मच्छर आ जाते हैं, तो चलते रहो नदी की तरह, अपने आप रास्ता बनता जाएगा लाइफ में। अब अच्छी अच्छी चीज़ों में, यही ना हो कि गलत ही चीज़ें पकड़ ली आपने, अच्छी चीज़ों में आगे बढ़ो। रुकना नहीं है बस कभी भी लाइफ में, कुछ भी हो जाए, चाहे छोटी चीज़ से शुरू कर लो, कोई बात नहीं, पर करो। पंजाब में ड्रग्स का मुद्दा बहुत ज़्यादा है, हरियाणा में ड्रग्स हैं, इतना नहीं है। जितना पंजाब में है? पंजाब में ज़्यादा है? हरियाणा में बीड़ी है। वो ड्रग है। वो हुक्का, बीड़ी ये है। वो तो वहाँ पे शरेआम ही चलता है ना? शरेआम वहाँ की बूढ़ियाँ पीती, जो हमारी है और नानी। कहते हैं हुक्का पीने वाला बंदा ज़्यादा जीतता है। सही में ये वो क्यों? ज़िंदा रहते ज़्यादा देर। वो क्यों? पता नहीं क्यों, क्या है उसमें, और ये उसमें मिथ्स तो नहीं बना हुआ है भाई, हम पॉडकास्ट में लोगों को हुक्का पीने के लिए नहीं बोल रहे हैं। बल्कि उसमें तम्बाकू होता है। मैंने खुद अपने नानू को बनाते हुए देखा है कि उसमें आग भरते हैं, उसके ऊपर वो गोसे से भर के जो जलाया होता है उसके ऊपर, और वो पी खुश रहती है वो। आपने पिया कभी? कभी नहीं। मैंने एक बारी, मैं बताती हूँ, मैं जब छोटी सी थी, मेरे यहाँ पे निशान होगा इधर जलने का। तो मैं गोदी में बैठी अपने नानू के, मेरे नानू के दोस्त आए हुए थे, तो हुक्का मेरे नानू पी रहे थे, मैं छोटी सी उनकी गोदी में, मैंने पकड़ के हुक्का नीचे किया, वो आग। उस टाइम पे पहली बार मैंने किया होगा, छोटी सी थी मैं उसके बाद कोई? उसके बाद कभी नहीं। नशे को दूर करने का आपके पास क्या एक सॉल्यूशन लगता है आपको कि सरकार को लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, पर अगर नशों से दूर करना है यूथ को, लोगों को, क्या आपके पास प्लान है, वर्कआउट सजेशन है? वर्कआउट करो दब के, सपाटे मारो, गेम करो, सच में ये चीज़ें अपने आप ही दूर हो जाएंगी। आपका मन ही नहीं करेगा, एक भूख बढ़ती है ना, काम की भूख बढ़ती है, अपनी बॉडी को तोड़ो, नशे अपने आप ही दूर हो जाएंगे। आपकी सुबह से शाम तक रूटीन क्या है? मेरी सुबह, मैं 5 साढ़े 5 बजे उठती हूँ रोज़? रोज़। ठंड में भी? जी। क्या बात है! 5 साढ़े 5 बजे उठती हूँ। अभी भी मैं आपको सच बताऊँ, अभी भी बताऊँ तो सर का फ़ोन आया जिन्होंने पॉडकास्ट के लिए बोला है। तो मैं सेट लगा रही थी इंक्लाइन का, फर्स्ट अभी लगाया था मैंने। उन्होंने बोला जी आज आपका पॉडकास्ट है। मैं कहा आज है? मैं सोचा कल है वो। मैं फटाफट छोड़ा मैंने, फटाफट रेडी, मैं कहा चलो ठीक है। तो सुबह उठती हूँ, उठ के फटाफट गर्म पानी, राम जी का नाम लिया, अपने पेट को खाना दिया, खुद की डाइट रेडी की, प्रोटीन, सुबह मॉर्निंग मेरा प्रोटीन होता है, डाइट होती है, और उसके 1 घंटे बाद अपने जिम के लिए निकल जाना, मतलब 6 बजे के करीब जाके जो मेरा शेड्यूल होता है वो मैं शुरू करती हूँ। मुझे मुझे जिम में मतलब 3 साढ़े 3 घंटे चाहिए अपने ऊपर, हाँ, अपने अपने ऊपर काम करने के लिए। मसल ट्रेनिंग भी होगी, मैं अपने गेम को लेके भी ट्रेनिंग करती हूँ साथ में, और फिर जो मैं रोडीज़ की तैयारी कर रही हूँ, अपने अपने स्किल्स के ऊपर काम कर रही हूँ।
तो वो मुझे करना होता है। फिर उसके बाद घर जाने के बाद मेरी फिर से प्रोटीन डाइट होती है सारी की सारी। फिर उसके बाद 2-2 3-3 घंटे बाद मील्स होती हैं, वो लेती हूँ। इनकम सोर्स क्या है फिलहाल की घड़ी आपका? कुछ प्रमोशंस भी हो सकते हैं ब्रांड की तरफ से, और ऑनलाइन ट्रेनिंग्स हैं, वो सब चीज़ें आती रहती हैं। प्रमोशन आप वो भी कर देते हो जो खुद नहीं यूज़ करते, लोगों को बोलने के लिए कि हाँ नहीं, ये नहीं, नहीं, मैं जो यूज़ करती हूँ मैं वही बताती हूँ हमेशा। ओके। हाँ, मैं अगर खुद यूज़ करके बताती हूँ कि हाँ, ये चीज़ सही है, सही नहीं है, खुद ऐसे करके। गैम्बलिंग ऐप कभी आपने प्रमोट की है? नहीं, नहीं, करोगे? नहीं, कभी भी ज़िंदगी में नहीं। मैंने 1-2 बारी ऐसे प्रमोट किया था ये जो बिटकॉइन वगैरह होते हैं, पर मुझे खुद को ऐसे लगा यार, मतलब प्रिय तो ज़मीर बेचने वाली एक बात होगी यार। मेरे जो जितने भी लोग मुझे फ़ॉलो करते हैं, वो ऑडियंस मेरी बहुत अच्छी ऑडियंस है मेरे पास। मतलब कि जो जेन्युइन वर्कआउट करने वाली है, अच्छे लोग हैं। तो उनके जब मैसेज, मैम हम आप पे बहुत विश्वास करते हैं, आप ये प्रमोट कर रहे हो, तो मुझे लगा मुझे नहीं करना चाहिए। तो मैंने उस चीज़ को फिर छोड़ दिया। 1-2 बार किया होगा मैंने ये। स्पोर्ट्स के लिए जैसे आपने बोला कि एक लड़की जा रही है, उसको अकेले एक लड़के ने घेर लिया तो उसका सामना भी नहीं कर सकती। हुँ। तो लड़कियों को क्या करना चाहिए घर पे सेल्फ ट्रेनिंग के लिए? देखिए, कइयों के घर में अलाउड नहीं होता लड़कियों को बाहर निकलना, ठीक है? तो अगर आप घर में वर्कआउट कर सकते हो, तो जैसे लॉकडाउन लगा था, जिम बंद थे, सब कुछ बंद था, तो अपने घर में बाल्टियाँ हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे कर। बाल्टियाँ उठाओ। हाँ, मैंने भी ऐसे ही किया है, सच में। घर में पोछे लगाए हैं, मेरे घर में जो कणक की बोरियाँ होती हैं, उठा के सीढ़ियाँ चढ़ी हूँ मैं। हाँ, हुँ। आप खुद सोचो, सिलेंडर है घर पे, बहुत सारी चीज़ें हैं, कि जिसको करना होता है वो कहीं भी जगह ढूँढ लेगा, जिसको नहीं करना उसके लिए आप बड़ा जिम खोल दो, वो तब भी नहीं करेगा। सोशल मीडिया आपके लिए डिस्ट्रैक्शन है? आजकल रील्स का ज़माना है, लोग छोड़ ही नहीं पा रहे रील्स को। एक बार इंस्टाग्राम की रील पकड़ लो, 1 घंटा निकल जाता पता ही नहीं लगता। देखिए, मेरे लिए रील जब होता है ऐसे इंस्टाग्राम को लेके, मेरे लिए साउंड को लेके दिक्कत होती है मुझे, कि मैं साउंड क्या ढूँढूँ? मतलब कोई अच्छा साउंड जो कि मेरे वर्कआउट की वीडियो पे मैच करता हो। मेरे लिए वो थोड़ा-सा होता है कि आगे ही मिल जाए, पहले ही मिल जाए कोई, पहली रील से ही मैं हाँ, यहाँ पे सॉन्ग को अटैच करके डाल दूँ। मेरे लिए मुझे ढूँढना पड़ता है, मुझे आधा टाइम मेरा वहाँ वेस्ट हो जाता है। तो वो थोड़ा मुझे लगता है कि यार ये थोड़ा चीज़ गलत है। बॉडी बिल्डिंग के बारे में हम बात कर सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल। कि बॉडी बिल्डिंग का क्या फ्यूचर है इंडिया में? जैसे पीछे एक वीडियो वायरल हुई थी, एक बॉडी बिल्डर को मिक्सर जूसर गिफ्ट मिला था। हुँ। तो उन्होंने टांग मार के उड़ा दिया था, तो लोगों ने बड़ा ट्रोल किया कि ये क्या है। पर वो चीज़ मैं महसूस कर सकता हूँ कि लाखों रुपए अपनी वो बॉडी पे लगाते हैं। तो दो तरफ हैं इन लोगों के। एक बोलते हैं कि यार अगर आप नहीं अफोर्ड कर सकते तो क्यों लगाते हो, और उसके बाद आप दोष लगाते हो सरकारों का, नहीं अफोर्ड करते बॉडी बिल्डिंग, रहने तो कुछ और कर लो। दूसरे बोलते हैं कि अगर देश को आगे लेके जाना, आज तक हमारा, मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इंडिया की तरफ से कोई मिस्टर ओलंपिया नहीं खेला आज तक हुँ, हुँ, हुँ। इंटरनेशनल। हुँ, हुँ। तो लोग बोलते हैं कि वहाँ पर भी किसी को जाना चाहिए। तो आप इस चीज़ को कैसे देखते हो? देखिए, बॉडी बिल्डिंग एक है, थोड़ी महंगी गेम है, ठीक है? इसमें मतलब जो इनके इंजेक्शंस होते हैं, 1800-1800 के, और एक दिन में 2-2 3-3 लगते हैं। क्योंकि मैंने जस्सी को देखा है, उनको देखा है जब वो लगाते हैं, क्योंकि वो खुद यूज़ करते हैं और मुझे पता है उनका खर्चा 1-1 2-2। स्टीरॉइड्स? हाँ, हुँ। वो 2-2। वो गलत नहीं है? देखिए, उनका गेम है वो। जैसे मेरी अपनी जूडो है, उनका अपना बॉडी बिल्डिंग का है। आपकी गेम में कोई स्टीरॉइड्स हैं? हाँ, चलते हैं, बट मैंने कभी नहीं लिए ज़िंदगी में, आज वो तक क्यों नहीं। लेते हैं? वो इसलिए लेते हैं ताकि उनकी परफॉर्मेंस थोड़ी बढ़े, स्पीड बढ़े, स्ट्रेंथ बढ़े, ताकत बढ़े, टू कंपेयर टू दूसरे प्लेयर से। तो उनका ये होता है, उनको तो अपने मसल्स के ऊपर डिपेंड होता है सारे बॉडी बिल्डिंग। और जो आप वीडियो की बात कर रहे हो, उसमें आप सबने ही देखा है कि एक पर्सन ने, जो थे वहाँ पे जी। बुजुर्ग थे, उन्होंने बोला कि वो फोटो खिंचवा रहे थे, शायद उन्होंने इशारा किया कि उधर जाओ ऐसे करके। थोड़ा उस टाइम पे इंसान का थोड़ा दिमाग भी डाउन हो रखा होता है, क्योंकि नमक छोड़ रखा होता है, पानी छोड़ रखा होता है, तो वैसे भी चिढ़ा होता है। ओबियसली उसको फील हो गया होगा उस टाइम पे, फेंक के मारा। लेकिन अगर आप बॉडी बिल्डिंग की बात करो तो ये बहुत रिस्की गेम भी है। हुँ, हुँ। कुछ पता नहीं है कब कहाँ पे आपकी सांसें रुक जाएँ, कुछ पता नहीं है। मेरे को कभी, हम तो बल्कि सब जस्सी को यही बोलते रहते, भई बस कर, रहने दे, अब हो गया है अभी, है ना? अब तूने लाइफ़ आगे जीनी है, ट्रेनिंग दे। उनका अपना एक सप्लीमेंट का स्टोर है, उस पे ध्यान दे। आगे करने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत 1 साल और खेल ले, बाकी ख़त्म कर दे इस चीज़ को। तो अगर हम बॉडी बिल्डिंग को, और मैं अगर पर्सनली मैंने जाना है बॉडी बिल्डिंग को लेके, तो वो अपने पार्टनर के साथ रह के जाना है, कि दूर से आपको ऐसा लगता है कि हाँ ठीक है, मसल्स है ये, लेकिन बॉडी बिल्डर की जो लाइफ है ना, बहुत ही ज़्यादा, मतलब एक, हम नॉर्मल लोग नहीं कर सकते ये सब, क्योंकि उस टाइम पे गुस्सा भी बहुत आता है। आपकी डाइट, आप खुद सोचो, चौबीसों घंटे आपने बॉइल्ड फिश खानी है, चिकन खाना, कौन खा सकता है? बिल्कुल अक जाएगा बंदा। इंसान थक जाएगा। मैं उनकी मील रेडी करती थी, मुझे पता है कि किस लेवल का गुस्सा होता था। बहुत, मतलब सहना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो बॉडी बिल्डिंग की लाइफ तो एक नॉर्मल फिटनेस से हम कभी कंपेयर कर ही नहीं सकते। तो वो तो अलग ही लेवल है उनका। वो भी कीड़ा है या वो भी पैसों के लिए होती है? पैसों के लिए, देखिए मैंने अभी तक जितने कॉम्पिटिशन देखे, 1-2 में ही है जहाँ पैसे मिलते हैं। बाकी तो ये थोड़ा अंदर से उनका एक है ही है कि ज़िद्दीपन है कि हमें करनी है ये वाली गेम। फिर ये कर क्यों रहे हैं अपनी बॉडी के साथ खिलवाड़ करना, और पैसे भी नहीं है इसमें, फ्यूचर भी नहीं है, फिर भी क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पैशन आज होता है ना, एक पैशन,
कि जैसे मेरे को है कि मुझे अपनी गेम में अपना नाम बनाना है, सबको ऐसे ही होगा, बॉडी बिल्डिंग वालों को भी सबको ये होगा कि यार नाम बनाना है, बॉडी अपनी रखनी है इस तरह से। तो मुझे लगता है उनके अंदर भी ऐसे ही होगा, क्योंकि अभी हमें तो पता ही नहीं उनके बारे में ज़्यादा डिटेल में, तो वही उनकी लाइफ वो ज़्यादा अच्छे से जानते होंगे। आप उन बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हो जो स्पोर्ट्स में वो कंडीशन में है जिस टाइम कभी आप भी थे, फाइनेंशियली वीक थे, स्पोर्ट्स करना चाहते थे? आज भी बहुत लोग हैं पंजाब के, मुझे पर्सनली बहुत कॉल्स करते हैं कि हम ये करना चाहते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं है, ये सरकार से करवा दो, आप कर दो। हम्म। उन बच्चों के लिए मैं भी बेबस हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ? देखिए, मेरा खुद का एक सपना है, ड्रीम है कि मैं अपना एक एकेडमी खोलूँ। उसमें लड़के लड़के दोनों होंगे, कोई ऐसा नहीं कि लड़कियों के लिए खासकर सेल्फ डिफेंस होगी, जूडो के बारे में होगा। अगर हो सके तो मैं हरियाणा या पंजाब दोनों में से कहीं भी हो सकता है, ओपन कर सकते हैं हम। तो मैं ज़्यादातर उन्हीं लोगों को प्रमोट करूँगी जो लोग बच्चे नहीं कर सकते और डेडिकेटेड है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरे टाइम पे मैंने देखा है बच्चे, हम दूध के पैकेट के लिए तरसते होते थे। जिस दिन दूध मिल गया हमें तो पता लगता क्या मिल गया। वो मिल्खा सिंह वाली मूवी में दूध 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 करके भागते रहते, हमारे लिए वो टाइम था वो, मतलब हमें दूध मिल गया। मतलब डाइट हमारी क्या होती थी हॉस्टल में, रोटी के अंदर तोड़ी, रोटी तोड़ी, सब्जी डाली उसके अंदर, दाल भी उसके अंदर, प्याज भी उसके अंदर, ऐसे कचप कचप करके खा गए, ऊपर से दूध पी लिया। ये हमारी डाइट होती थी उस टाइम पे। खुद सोचो, अगर डाइट वो डाइट फॉलो करके हम इंटरनेशनल तक खेलने चले गए, एक प्रॉपर प्रोफेशनली डाइट एक स्पोर्ट्स पर्सन की होती, तो हम आज कहाँ होते। बिल्कुल। तो मैं उन बच्चों को आगे लेके जाऊंगी, और मेरा खुद का सपना है कि जो मैं नहीं कर सकी शायद मैं अपनी ट्रेनिंग से उनको करवा सकती हूँ एक अच्छी। अगर मेरे से ट्रेनिंग करके अगर बच्चे किसी और सेंटर में जाके अच्छा बनेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा कि सरकार को क्या सजेशन देना चाहते हो? अगर सरकार का कोई बंदा आपका ये पॉडकास्ट सुन रहा है, उसको क्या हाँ, बोलना चाहते हो? उनको यही बोलूँगी कि बच्चों की हेल्प करो भी, मतलब बच्चों को फर्स्ट ऑफ ऑल जिनकी एज निकले उनके लिए जॉब्स निकालो पहले तो, क्योंकि हम छोटों को तो ग्रो कर लेंगे, ठीक है। आपको नहीं लगता कि सरकार के लिए भी इतनी जॉब्स निकालनी पॉसिबल नहीं है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो काफ़ी टाइम से नहीं निकली है पंजाब पुलिस की, बहुत टाइम हो चुका है। और कहीं हमारे एक वेट कैटेगरी होती है हमारे स्पोर्ट्स की टीम में, तो हमें भी पता है कि ये वेट कैटेगरी खाली पड़ी है इस वक्त। जी। तो वो रेडी बैठे होते हैं बच्चे, तैयारी कर रहे होते हैं अपने अपने वेट की, मुझे इस वेट पे सिलेक्शन करा के पंजाब की टीम में सेलेक्ट होना है। तो उनके लिए तो आपको स्पोर्ट्स कोटे में निकालनी चाहिए। स्पोर्ट्स कोटे के लिए तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी एज निकलती जा रही है सबकी। मेरे साथ के कितने लोग हैं जो अभी भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, मेरे पास एक दो पहले फ़ोन आया कि अभी भी कोई भर्ती निकली है यार, अभी भी ऐसे ही है। अभी लोगों को किसी और स्टेट में जाके भर्तियाँ देनी पड़ रही हैं, यूपी पुलिस की देनी पड़ रही, दिल्ली पुलिस की देनी पड़ रही, हमारे पंजाब वाले में क्यों नहीं निकाल रहे हैं? सबसे बड़ी बात तो ये है। स्पोर्ट्स में चीटिंग चलती है, बाइस्ड जजमेंट होती है जहाँ पे, बहुत फिर उसमें आप क्या करते हो जब बहुत आपको मेरे पता है? साथ तो मेरे साथ तो हुआ है, 2 बार हुआ है, मैं सही बताऊँ तो। मतलब मेरे को अभी भी याद है, हमारे कॉलेज के कॉम्पिटिशन थे, और हमारे साथ वाले कॉलेज के साथ ही मेरा कॉम्पिटिशन था एक लड़की के साथ। तो मैंने उसको स्कोर मारा है, कोच ने दिया ही नहीं। वो क्यों? दिया, मैं वहाँ खड़ पता नहीं क्यों दिया, शायद पैसे पूसों को लेके चक्कर चल रहा होगा, दिया ही नहीं उन्होंने, बिल्कुल भी नहीं दिया। मैं वहाँ खड़ी होकर रोने लग गई। मैंने गुस्से में अपने शूज़ कहीं फेंके, बेल्ट कहीं फेंके, और जहाँ मेरा हॉस्टल था, जहाँ हमारी स्टे थी, बाहर बैठ के मैं बहुत रोई। मैं बहुत रोई कि भी ये क्या हो गया है, ये सब क्या है ना। तो एक कहते हैं ना, ऊपर वाला हमेशा सुनता है। मैं ऊपर वाले पे इतना विश्वास करती हूँ। मैंने मेहनत की, मैं रोते रोते मेहनत की। तो मेरी जिस लड़की के साथ फाइट थी वो मेरे सेंटर में थी, वो मुझे कहती, प्रिया तू इतना सीरियस क्यों ले रही है इस चीज़ को, इतना सीरियस लेने वाली बात है भी नहीं है, कि हमारे सेंटर में तो मेडल आया है, जी। हमारे सेंटर में आया मेडल, फिर क्या हो गया। हाँ भाई, सेंटर में आया, तेरा आया गोल्ड, मेरा नहीं, गोल्ड नहीं आया, मेरा सिल्वर आया है, मेरा गोल्ड आना चाहिए था। तो फिर हमारे दोबारा ट्रायल होते हैं बड़े, उससे अगले कॉम्पिटिशन के लिए सेकंड और फर्स्ट का दोबारा ट्रायल होता है। मैंने फिर वहाँ पे गोल्ड लिया। तो फिर फर्स्ट आया हाँ, आप? फिर मैं फर्स्ट आई। फिर उससे अगला अगला जो उससे लेवल का ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी हुई, उसमें फिर गोल्ड आया। तो इस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि हमें सब्र करना चाहिए। और एक तो बार तो मैं ऐसे भी हुआ है कि मैंने आईटीबीपी की भर्ती दी थी। तो आईटीबीपी में मेरी बेस्ट फ्रेंड है पद्मा, वो भी वहीं पे भर्ती है। तो मैंने एक दिन में 6 किलो लूज़ किया था। एक दिन में 6 एक दिन किलो? में। वो कैसे? अरे स्पोर्ट्स वालों आधा में भारत पतला हो जाएगा, बता दो। कीड़ा होता है, कीड़ा स्पोर्ट्स एक पर्सन। दिन में 6 किलो? हाँ, एक दिन कैसे? में। मैंने रात को पता चला भी मेरा मेडिकल होने वाला है। मेडिकल मेरा हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। मेडिकल जब आया, पता चला कि मेरा वेट मेरी हाइट के अकॉर्डिंगली 14 किलो ज़्यादा है। क्योंकि आर्मी में आपको भर्ती आपकी हाइट के अकॉर्डिंग करते हैं, पर मेरा मेडल तो मेरे वेट के अकॉर्डिंग आया ना। तो मैं क्या, ठीक है, मेरे पास भगवान की दया से सिर्फ संडे था, मंडे को दोबारा री मेडिकल होने वाला था मेरा। मैंने रात को खाना छोड़ दिया, पूरा दिन खाना नहीं खाया, सिर्फ गर्म पानी नींबू डाल के पिया, और पागलों की तरह रनिंग की मैंने। अंदर पूरी बॉडी पे मूव लगा लिया। हमारी किट इतनी हैवी होती है, उसको पहन के अंदर 2-2 ट्राउज़र, 3-3 अपर, 2 सॉक्स, मुँह पे, मतलब सिर्फ आँखें आँखें दिख रही थी मेरी, ऐसा।
तो मेरी जो बेस्ट फ्रेंड है तो वो मेरे साथ भाग रही है दोपहर उस टाइम पे, मेरा हाथ पकड़ के मेरा वेट लूज़ करवाने के लिए, चल 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 चल। हमारी जूडो की ट्रेनिंग इतनी हार्ड होती है, थ्रोइंग होती है, तो उस हालत में आप मर रहे हो, गिर रहे हो, फिर ट्रेनिंग भी करो उसी तरीके से एक हाई एनर्जी लेवल लेके। तो धीरे धीरे करके मेरा वेट था 62 या 61, मेरा वेट आया है नहीं, मेरा वेट 70 चल रहा था, मेरा वेट आया 64 के 63, इतना वेट मैंने नेक्स्ट डे दिया और मेरा मेडिकल वहाँ पे क्लियर हो गया था फिर उस टाइम। देख लो भारत वालों, अगर कोई एक दिन में पतला होना चाहता है 3-4 ट्राउजर डाल लो, भागो और सारा दिन मर तो नहीं जाएगा कोई। देखिए वो कह तो रही है ना, वो आम आम लोगों के लिए नहीं है, वो एक स्पोर्ट्स पर्सन की ज़िंदगी अलग ही होती है। मोटिवेशन कहाँ से लाते हो? रोज रोज सुबह उठ के एक ही चीज, जिम वो जाना, बोर नहीं डिसिप्लिन होते है, हैं? वो डिसिप्लिन है, वो मोटिवेशन नहीं है। मोटिवेशन आपको कह तो रही हूँ, मोटिवेशन एक आग की तरह बढ़ेगा, कम हो जाएगा, आज है कल नहीं है। डिसिप्लिन डेली उठाएगा आपको कि मुझे जाना है तो जाना है। डिसिप्लिन में कोई एक लेवल नहीं होता कि आज ज़्यादा बड़ा डिसिप्लिन, आज छोटा है। डिसिप्लिन एक कंटिन्यू चलेगा। मोटिवेशन है कि कभी बड़ा है, कभी छोटा है, कभी कम है, कभी हाँ, कभी है। आज तो मोटिवेशन ही नहीं है, आज कैसे मारूंगी आज। स्पोर्ट्स में कर्मा का रोल होता है, कर्मा का लाइक जैसे जो करोगे वो भरोगे। मेडल आने में आपको आपके कर्मों का साथ होता है, मेहनत के साथ साथ बिल्कुल लक लक चलती है, लक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लक भी बहुत ज़रूरी है। एक कहते हैं ना, एक इंसान कब से मेहनत कर रहा है और एक कुछ साल से मेहनत करके और आपकी जो आपको मिलना चाहिए था वो लेके चला जाता है। हम्म। तो लक तो बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी। कर्मा बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है। कर्म, जो कर्म करोगे वही मिलेगा आपको। कभी आपने चीटिंग की है किस चीज़? स्पोर्ट्स में? स्पोर्ट्स में चीटिंग नहीं कर सकते आप कभी भी, नहीं कर सकते? कभी भी नहीं कर सकते। आप चीटिंग करोगे आपका ही नुकसान है। जो आप जिसके साथ स्पोर्ट्स की आपकी आती है, गेम आपने खेलनी है, उसको किस नज़र से देखते हो? दुश्मन की नज़र से? देखिए जब फाइट होती है, मुझे अभी भी याद है, इटावा में एक फाइट थी मेरी, यूपी की साइड है। तो मुझे वो ऐसे फील होता, प्रिया तेरी फाइनल फाइट है ये, चाहे कुछ भी हो जाए, मतलब फाइनल वाली फीलिंग आ रही थी कि भी तुझे इंडिया के लिए मेडल लेना है, जो मर्जी हो जाए, चाहे वो नेशनल लेवल का कंपटीशन था। तो दुश्मन की तरफ देखना ही पड़ता है, उसकी आंखों की तरफ, उसके मूवमेंट क्या करना है, उसके फुट मूवमेंट क्या चल रहे हैं, वो कौन सा हाथ दिखा रहा है, ग्रिप कौन सा लेगा, तो वो सब नोटिस करना पड़ता है। दुश्मन तो देखना ही पड़ेगा, उसको एक तरफ का कॉम्पिटिटर है मेरा, उसको कम नहीं समझ सकते उसको। जूडो में कोई ओलंपिक मेडल आया हमारे पास इंडिया को? जूडो में अभी तक तो कोई भी नहीं है, बाकी पार्टिसिपेट बहुत है, बहुत सारे हैं। गरिमा दीदी है, अवतार भी है, गुरदासपुर से बहुत सारे हैं। आप कब जा रहे हो? हमारा मैं चाहूँगी, अभी आई थिंक मुझे लगता है मैं थोड़ी दूसरी लाइन पे चल रही हूँ फिटनेस को लेके। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं जिसको ट्रेन करूँ या मैं जिसके ऊपर अपना टाइम लगाऊँ, मैं इन फ्यूचर बच्चों को कर सकती हूँ। आप नहीं जाओगे? मैं जाने की मेरा ड्रीम है। हम्म। तो एक होता है ना कि बच्चे को एक तो बचपन से सपोर्ट मिला है कि हाँ, बचपन से ये डाइट मिली है प्रॉपरली, एक गाइडेंस मिली है, एक प्रॉपर प्रैक्टिस के लिए जो परफेक्ट कोच मिला है। तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा है मेरा हमेशा से ही। तो हमारा जो मेन सेंटर है जिसमें कि मुझे लगता है कि बच्चों को जाना चाहिए, वो बेंगलोर में है एक। वहाँ पे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, हद से ज़्यादा। वो क्या चार्ज लेते हैं फिर मंथली? कोई चार्ज नहीं है, वो बस ये है कि बच्चों को सिलेक्ट करते हैं, जो अच्छे बच्चे होते हैं। एक दो बार तो कहीं सिफारिश भी लगती है, साफ सीधी बात है, सिफारिश भी लगती है वहाँ पे। वो भारत से कहीं भी कोई भी बच्चा जा सकता है वहाँ पे? हाँ, कोई भी जा सकता है, वो खुद सेलेक्ट करते हैं। जूडो के लिए वो? हाँ, जूडो के लिए सारी गेम्स है वैसे वहाँ पे, ओके। सारी गेम्स है, बहुत तो वो बड़ा डाइट सेंटर। सारा वही करवाएंगे? सारा खर्चा वो उठाते हैं, प्रोटीन से लेके आपकी फिजियोथेरेपिस्ट से लेके आपकी इंजरी से लेके ऑपरेशन से लेके सारा। तो नीरज चोपड़ा वहीं से तो है, वहाँ से 1 करोड़ रुपया उनको मिला उसी सेंटर से। आप इंजरी हुई है आपके कभी? बहुत बारी, हर कैसे डील जगह। करते हो फिर? इंजरी का ऐसे होता है, एक बार अगर ये इस बाजू की लिगामेंट, दोनों को ऑपरेशन बता रखे हैं। ऑपरेशन हुए हैं दोनों को? नहीं, बता रखा है कि डॉक्टर ने बोला अगर वेट ज़्यादा उठाओगे तो ऑपरेशन में बात आ जाएगी, लिगामेंट में स्वेलिंग है। और क्या बोलते हैं, मेरे पैर का अंगूठे की साइड की हड्डी टूटी है, उसका ऑपरेशन बता रखा है, नीज में प्रॉब्लम है। तो चोटें तो लगती रहेंगी, तो ऐसे है कि अगर इस पे लगी है तो बाकी बॉडी तो फ्री है, उससे काम करो। तो बिना दवाई के आप ठीक चल रहे हो, बिना ऑपरेशन के? ये होता है, स्ट्रेंथनिंग होती है, हम्म। कोच ने बता रखा होता है। हमारे कोच भी थोड़े जुगाड़ू होते हैं चीज़ों को ठीक करने के लिए कि हाँ ये ऐसे ठीक हो जाता है, ऐसे ठीक हो जाता है, बस उन चीज़ों चलते रहते हैं। आपकी लाइफ में आज की डेट में क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं जो आपको लगता है कि मेरे को इस चीज़ से फाइट करना है, स्पोर्ट्स को छोड़ के, दुश्मन को छोड़ के? अभी तो यही है कि लोग मेरी बॉडी को लेके बहुत बोलते हैं मुझे कि मैं इंजेक्शंस लेती हूँ। हाँ, मेरे पार्टनर को बोलते हैं, उससे पूछते हैं प्रिया जी कोई इंजेक्शन यूज़ करती है? सर्कल क्या चल रहा है? हाँ, क्या चल रहा है उनका, है ना, डाइट क्या है उसकी, क्या यूज़ कर रही है? तो मैं खुद बोलती हूँ भी मेरी जो बॉडी है ये गिफ्टेड है भगवान की तरफ से, ठीक है? मेरे को जो स्ट्रेंथ मिली है अरे ये 15 साल से आप वर्कआउट कर रहे हो, तो वो तो गिफ्टेड के साथ साथ आपकी मेहनत भी बहुत ज़्यादा है। वो कहते भी तो मसल मास इतना बढ़ गया है, कुछ तो यूज़ किया है, मसल मास इतना गेन किया, कुछ तो किया होगा। वो उस चीज़ से मुझे थोड़ा होता है आजकल कि हाँ, ये क्या है मतलब। फिर क्या करते हो उसको, उसके लिए उसके मैनेजमेंट कैसे करते हो अपने दिमाग की? कुछ नहीं कहती मैं, जिसको जो बोलना है बोलते रहो। मुझे पता है मैं अपनी जगह पे सही हूँ, मेरे जो साथ वाले हैं उनको पता है कि मैं सही हूँ। हेट कमेंट वालों के साथ कभी लड़े हो?
नहीं, कभी नहीं, मैं जवाब भी नहीं देती। मैं आपको सच बताऊँ तो 100% में से मुझे 95 या 96 लोग हैं जो बहुत प्यार करते हैं। सो 4% तो उनको ध्यान दो ही मत। कहते हैं अगर आपको सफल होना है ज़िंदगी में, तो आप जो आपको उल्टा-सीधा बोल रहे हैं उनको जवाब देते-देते आप कभी सफल होओगे नहीं ज़िंदगी में। उनको जवाब दो मत, उनको बोलने दो जो बोलना है। आप खुश हो ज़िंदगी में? बहुत खुश हूँ, हैप्पी पूरे हूँ, बहुत खुश हूँ। रिलेशनशिप के बाद ज़्यादा खुश हो? बिल्कुल खुश हूँ, बल्कि बहुत अच्छे पार्टनर है, कसम से। मतलब मैं अपने आप को लकी बोलती हूँ कि मुझे ऐसा पार्टनर मिला है, सपोर्टिव करता है, मेरी मम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मेरे लिए मेरी मदर सब कुछ है, उनसे बहुत प्यार करते हैं। मदर को कैसा महसूस होता है आज आपके प्रिया शर्मा जी को देखकर कि छोरी हमारी आगे बढ़ रही है? मम्मी को बहुत अच्छा लगता है जब मम्मी मुझे टीवी पे देखती है, कहीं हुँ। भी देखती है, इंस्टाग्राम पे देखती है। और जब मम्मी देखती है कि मेरी किट जो मेरी जूडो किट है उसके पीछे प्रिया इंडिया लिखा होता है, तो मम्मी को बड़ा अच्छा लगता है। जब मैं इंडिया के कपड़े पहनती, आज पहना तो मम्मी को बड़ा खुश लग रहा था कि भी हाँ। तो जब मम्मी को बाहर लोग बोलते हैं कि अपनी बेटी को ज़रूर लेके आना शादी में, वो नहीं आएगी तो हम लेने आ जाएंगे, ऐसे वैसे करके, मैं कहती कोई नहीं, आ जाएगी, मैं तो आप फिर शादियों पे जाके खाते हो सारा कुछ? शादी में जाती नहीं हूँ सर मैं, सच में। क्यों? नहीं, बहुत कम। मतलब मुझे वहाँ जाके, पहले शादी में मेरे जाने का एक ना जाने का रीज़न ये भी था, मेरे रिलेटिव मिलते थे, छोरी का ब्याह ब्याह कर दो, हुँ। छोरी का ब्याह कर दो, कोई छोरा टो है इसके खातर। मैं नहीं जाऊँगी शादी में आज के जी। बाद। बस मेरा एक ये भी रीज़न है, और दूसरा ये भी है कि डाइट थोड़ी-सी ऊपर-नीचे हो जाती है। डाइट मतलब वहाँ पे ऑब्वियसली खाना पड़ेगा आपको, तो वो ये भी है। थोड़ा कपड़ों को लेके भी मैं थोड़ी मर्द लगूँगी उन कपड़ों में। नहीं, आप साड़ी में तो नहीं लगोगे मर्द। नहीं, ऐसे ही होता है, मतलब सूट सलवार में मतलब ऐसे फ़ील होता है कि प्रिय रहने दे तू घर। कपड़ों से हम जज तो नहीं कर सकते इंसान को कि अगर इसने छोटी ड्रेस डाली है तो उसकी सोच छोटी है या नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मेंटल की है, सब अपनी-अपनी बातें हैं दिमाग की कि कौन क्या सोचता है। मैं तो बिल्कुल, मेरी साइड से तो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं। जिसको जो सोचना है सोचो। अगर मैं कुछ कपड़े पहन रही हूँ, मुझे पता है सामने से 2 बातें आएँगी, उसका दिमाग मुझे थोड़ा ना पता है कैसा-कैसा है। तो उसको सोचने दो, उसको जो सोचना है। मेरे को लगता है कि लोगों को दुनियादारी की टेंशन छोड़कर, लोगों की बातें छोड़कर अपनी ज़िंदगी में ज़रूर ध्यान देना चाहिए क्योंकि टाइम निकल रहा है। बिल्कुल। हर इंसान आज अपनी ज़िंदगी में ध्यान नहीं दे रहा, बाकी सारी बातें कर रहा है। अपने बारे में बात नहीं कर रहा, अपने पैशन के बारे में बात नहीं कर रहा, अपनी फैमिली के बारे में बात नहीं कर रहा। इंसान तो आजकल, मैं कह रही हूँ ना, इंसान आज दुखी क्यों है? इसलिए दुखी है क्योंकि सामने वाला खुश है। हुँ। इंसान आज का जो दुखी है वो इसलिए दुखी है क्योंकि सामने वाला खुश है। अपनी प्रॉब्लम्स की तरफ तो ध्यान ही नहीं है हाँ, उनका हाँ, नहीं। कि मेरे पास क्या-क्या कमी है, मैंने ज़िंदगी में क्या करना है भाई। दूसरे की थाली में घी ज़्यादा है, हुँ। उसको ये दिखता है सामने वाले को। अपनी लाइफ में लोगों को शांति ढूँढनी चाहिए। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी सफलता तो ये है कि हमें अपनी लाइफ में शांति ढूँढनी। आप शांति कैसे ढूँढते हो? मैं तो ऐसे ढूँढती हूँ मेरी फैमिली में, अपने मन में, अपने पेट के साथ, अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ। मेरे लिए यही सबसे बड़ी वो है, मेरी सफलता है लाइफ की, कि मैं खुश हूँ अपनी फैमिली के साथ। तजुर्बा क्या निकाला आपने ज़िंदगी का आज तक? इतने साल दुनिया में हो गए आपको आए, हुँ। सँभाले, सोशल मीडिया ये वो, क्या तजुर्बा निकाला? क्यों मिली हमें ये ज़िंदगी? देखिए, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। ये ज़िंदगी पैसों से खूबसूरत नहीं होती है, ये सोच से, अपनों से खूबसूरत बनती है। मेहनत करो लाइफ में, आगे बढ़ो, और अपना एक मोटिव या अपना एक गोल ढूँढो कि हम लाइफ में आए क्यों हैं? भगवान ने किस चीज़ के लिए तो भेजा तुम्हें, इतनी दुनिया है। अपना गोल ढूँढो कि करना क्या है? तुम्हारे माँ-बाप ने तुम्हें इतनी देर तक पाला पोसा, बड़ा किया, तो अब उनकी बारी है। अब वो बच्चे हो चुके हैं, तुम बड़े हो चुके हो। आपको कई बार जनरेशन गैप नहीं महसूस होता कि जो माएँ हमारे टाइम की हमारे लिए कर गई, हुँ। आगे जनरेशन जो माँ बन रही है वो कर पाएगी अपने बच्चों के लिए इतना कुछ? मुझे नहीं लगता कर पाएगी इन फ्यूचर कभी भी, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है, खासकर लड़कियां, अभी भी उनको बेड पे खाना चाहिए। आज की लड़कियां मैगी खाती है, मोमोज खाती हैं, समोसे खाती हैं, सब कुछ खाती है। देखिए, खाइए, बट एक लिमिट का होता है, एक चीट मील होती है जिसको हम बोलते हैं। अपने उस दिन डाइट नहीं करते, खाइए। लेकिन इन फ्यूचर अगर आप सोच रहे हो कि कोई माँ जैसे पुराने ज़माने की करती थी, तो नहीं कर पाएगी, इतने पेशेंस नहीं कर पाएगी। क्योंकि मेरी मदर को मैंने देखा है, मतलब कितना पेशेंस इतना मेरे में भी नहीं होगा, मेरी मदर में। सच में मेरी मम्मा ने मतलब बहुत क्या कुछ सहा है? बहुत कुछ हमारे सहा पेरेंट्स है। ने जो कुछ सहा है वो हम नहीं सह सकते। कसम से नहीं, मतलब एक लेवल, कसम। आपके मैंने पॉडकास्ट देखा था आपके मम्मी पापा जी। का। आपकी मम्मी ने बताया कि आपके पापा के लिए रिश्ता कैसे ढूंढ रहे हैं, वो जी, झाड़ू जी, मार जी, रहे जी। थे। तो वो एक पेशेंस जो है, एक लेवल, एक रिस्क ही था। आप बिल्कुल। खुद सोचिए कि झाड़ू मार रहे थे और लड़का पसंद किया, तो एक रिस्क ही होता है एक तरफ का। तो वो जो लेवल होता है सोचने का, या जो पेशेंस होते हैं, वो आजकल के बच्चों में या माओ में नहीं होगा, मुझे ऐसा यही लगता कारण है शायद आजकल रिलेशनशिप सबसे ज़्यादा जल्दी टूट जाती हैं, डिवोर्स हो रहे हैं क्योंकि पेशेंस नहीं है। है। बिल्कुल। हमारे टाइम पे पापा उनों के टाइम पे बताते हैं वो कि कैसे जैसे आपने बताया आपकी मदर ने आपके लिए वही घर में रहे कि नहीं मुझे डिवोर्स नहीं करना ना, कितनी बड़ी कुर्बानी है। सच में। आज की वो अब ठीक थे कि गलत थे वो बात अलग है, हम्म। पर कहीं न कहीं उन्होंने कुर्बानी दी आपके लिए।
पर आजकल जो सिचुएशन चल रही है, वो कह रहे भाई मैं नहीं सुनूंगी, इसके बाद ना डिवोर्स उठा। बिल्कुल भी नहीं, मैं डिवोर्स करके घर जाऊंगी अपने सीधे से, अपने माँ बाप के अपना वो करूंगी। लेकिन जो पुराने टाइम की माएँ होती थी, वो तो मतलब उनके लिए सल्यूट है सच में जो उन्होंने किया। बल्कि उस टाइम पे तो मेरी मम्मी को तो यही बोल दिया था, डिवोर्स कर दे, छोड़ कर चल जा, छोरी ना भी यहीं पे छोड़ दे। मम्मी कहती नहीं भाई मैं नहीं छोड़ सकती इसको। मम्मी कहती मैंने तुझे जैसे पाला है वो मैं जानती हूँ। देखो, माँ बनने का प्रोसेस जो 100 साल पहले था वो आज भी वही है ना। बच्चा माँ के पेट से जन्म लेता, आज भी माँ के पेट से जन्म ले रहा है, 10 साल बाद भी माँ के पेट से लेगा। पर वो क्या गैप पड़ रहा है ना कि रिश्तों में कितनी आसानी से आज भाई भाई को काट रहा है, कितनी आसानी से आज बच्चे माँ बाप को बोल रहे हैं तुमने किया ही क्या है। ऊपर से माँ बाप बोल रहे हैं कि ठीक है भाई तुम अपना देखो, हम अपना देखो। पर चलो, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपको थैंक यू। कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बल्कि आपसे बात पहले नर्वस हो रही थी, लेकिन अब मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, तो मैं अब खुल बोलो क्या बोलना है। कर अभी तो मैं बहुत खुल के अच्छे से बोल पा रही हूँ। पहले स्टार्टिंग में थोड़ी नर्वस थी मैं आपसे मैं बात। पंजाब की तरफ से आपको बोलना चाहता हूँ कि आप पंजाब में या हरियाणा में भी भाई हैं हमारे, कि कुछ भी आप करना चाहते हो समाज भलाई के लिए, क्योंकि जिस चीज़ से आप गुजरे हो ना, वो घर से, वो कंडीशन जो आपने बताई, आप बड़ा बखूबी समझ सकते हो कि क्या बीतती है जब मन करता है कुछ करने का और हमारे पास सपोर्ट ना हो, चाहे वो मेंटली हो, चाहे वो फिजिकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो। तो मैं चाहता हूँ अगर भगवान ने आज हमें, देखो मैं कोई अमीर नहीं हूँ बहुत ज़्यादा, ना मैं कोई पावरफुल पॉलिटिशियन हूँ, पर भगवान की कृपा से ना हमें लोगों ने एक पावर दी है, एक एनर्जी दी है, जो मैं चाहता हूँ कि हम एक ज़रिया हैं, हमारी एनजीओ का नाम भी एक ज़रिया है, तो वो लोगों के भले के लिए लगे। और मैं पूरा न्योता देता हूँ यूथ को, जो कुछ करना चाहती है अपने आइडियाज़ हमारे साथ डिस्कस करें। और क्या करना चाहते हो आप अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने देश के लिए, लोगों के लिए, तो हमारे साथ डिस्कस करो। हम कहीं भी आपके काम आ सकें, हम आपके साथ हैं। देखिए अभी तो यही है कि मैं अपना सेंटर खोलूँ फटाफट से, जल्दी से जल्द हो सके तो। और बच्चों के लिए होगा कि सेल्फ डिफेंस होगा, उसमें ज़्यादा जूडो ट्रेनिंग होगी और स्ट्रेंथ होगा, सारा स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होगी सारी की सारी। और खासकर लड़कियां आए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे और वो बच्चे आए जो नहीं अफोर्ड कर पाते। अमीर लोग आए ठीक है, बट मेरे लिए ज़्यादा ये होगा कि वो बच्चा आए जो करना चाहता है लाइफ में बिल्कुल। कुछ। क्योंकि मैंने अपने टाइम में जो बच्चे आज भी मुझे कई बार रास्ते में मिलते हैं ना, तो मुझे रोकते दीदी नमस्ते, तो मैंने खुद अपनी किट जो जूडो ड्रेस है वो भी नहीं अफोर्ड कर पाते, मैंने अपनी किटें दी हैं उनको, भाई तू इसमें प्रैक्टिस कर ले कोई क्योंकि बात। आपने वो सिचुएशन हाँ, समझ रखी देखिए है। शूज़ दिए अपने, अपनी किटें दी हैं, ड्रेस दी हैं, अपने कपड़े दिए हैं अपने पहनने के लिए कि भाई तू ये ले, ये दूध का पैकेट तू रख, मैं नहीं बहुत पीनी, बड़ी बात है तू पी। ये शायद इसीलिए है क्योंकि आप वो सिचुएशन समझ हाँ, सकते मैं हो, समझती हूँ उसमें सर। से गुजरे हो। आप खुद सोचो, हमने तो कई बारी शायद अगर मेरे कोच अभी देख रहे होंगे तो हमने दूध के पैकेट चुराए हैं कोच के थैले में से हाँ, इसलिए कि डाइट ज़्यादा हो जाएगी, अच्छी डाइट होगी, कल प्रैक्टिस अच्छी होगी। 2 टाइम प्रैक्टिस होती थी हमारी, तो हम दूध के पैकेट चुराते थे, बादाम चुराते थे। मेरे को ना ज़िंदगी में कुछ रिश्ते ऐसे मिले हैं अभी, हाँ जी। जिनको मिलने के बाद मैं सोचता हूँ कि ये पहले क्यों नहीं मिले, हुँ। कि यार भगवान पहले क्यों नहीं ये बंदा मिलवाया मुझे। कोई टा लड़की नहीं, कोई लड़के ही। तो कुछ रिश्ते ऐसे हैं मैं जिनको सोच के होता है यार रब पहला क्यों नहीं मिले। तो फिर मेरे को खुद ही जवाब मिलता है कि कुछ चीज़ तक पहुँचने के लिए ना आपको कुछ चीज़ से निकल के गुजरना बहुत ज़रूरी है। तो भगवान भी आपका वो संघर्ष देखता है कि ये कितने पानी में है। हुँ। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि जो डिसिप्लिन है वो अपनी लाइफ में रखो, ईमानदारी के साथ करते रहो, और दुनिया में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। और जब आप कामयाब हो जाते हो, देखो अब आप बैठे हो पॉडकास्ट में अपनी स्टोरी सुना रहे हो, वो तभी सुना रहे हो ना अगर वो कुछ निकला हुआ है। अगर आप भी बॉर्न विद सिल्वर स्पून होते कि भाई माँ के पास बहुत पैसा, हम हरियाणा के बड़े तगड़े घर से हैं, हमारे पास 100 गायें हैं, तो फिर कहाँ आज स्टोरी सुनाते आप। बिल्कुल, मतलब जब पैसों की बात आई थी तो लॉकडाउन लग गया था। हम्म। मेरे पापा ने जो कर्जा लिया था वो डबल हो गया था। मतलब मान लो अगर मेरे पापा ने 50,000 किसी से उठाए थे, वो डबल होके ब्याज के समेत 1.5-2 लाख रुपया बन गया वो। तो घर पे पैसे मांगने आते थे लोग। तो मुझे ऐसे फील होता था, प्रिया क्या ही तूने क्यों ही खेला इंटरनेशनल लेवल, क्या हम्म। ही जरूरत थी तुझे ये सब करने की, अपने पापा को इस सिचुएशन में डाल दिया तूने। फिर हमें कहीं ना कहीं से पैसे, कुछ सेविंग भी दी और कुछ घर की ज़मीन हमें बेचनी पड़ी, तब जाके वो पैसे दिए। तो मुझे तो यही लगता है कि यार कभी आपको रुकना नहीं चाहिए, बस हम्म। लाइफ में रुको मत। मैं आपको सच बताऊं, लॉकडाउन में मैंने यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी थी। अच्छा जी। हाँ, मतलब मैंने अखबार, मेरी मम्मी ने घर पे अखबार लगवा दिए, पूरा दिन उसमें टॉपिक लेके पढ़ते रहना कि चल ये नहीं तो यही सही। रुकना नहीं है बस, मैंने यही सोचा ज़िंदगी में, कभी रुकना नहीं है। रुक गए ना तुम, वहीं पे तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। और कभी अपनी सफलता को लेके खुश मत होना कभी लाइफ में, कि जो तुम्हें सक्सेस मिली लाइफ में, अगर तुम खुश हो गए इट मीन्स तुम वहीं पे रुक जाओगे। ये भी चीज़ है, तुम आगे बढ़ते रहो। सेटिस्फाइड ना हो। सेटिस्फाई मत हो, खुश मत हो कभी भी। एक तो है कि कभी तुम हार गए तो निराश नहीं होना है, सफलता मिली ज़्यादा खुश नहीं होना है। वो बड़ी खूबसूरत बात बोली थी किसी ने कि मैं पहाड़ पे सारी ज़िंदगी चढ़ना चाहता हूँ,
चोटी पे कभी नहीं पहुंचना चाहता, क्योंकि चोटी पे पहुंचने के बाद वापसी है, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। और पॉडकास्ट करने का ना देखो एक कारण भी यही है कि लोग अपना एक्सपीरियंस दें, और जो लोग सुन रहे हैं, पहली बात तो जो सुनना चाहते हैं, अब आपने बात की है ना, सोशल मीडिया पे आजकल बहुत कुछ चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, अपना माइंड रिलैक्स करने के लिए लोग सुनते हैं कई बार, पर मेरे को लगता है कि अपने आप को ग्रो करने के लिए हमें सुनना चाहिए। जैसे मैं भी पॉडकास्ट सुनता हूँ, इंग्लिश पॉडकास्ट सुनता हूँ, हिंदी पॉडकास्ट सुनता हूँ, कि अपने आप को और एक बेहतर इंसान कैसे बनाया जाए। कोई मंजिल तो है नहीं हमारी, और सफ़र है, जैसे आपने बोला कि सफ़र में अगर साथी अच्छे हों तो मज़ा आता है। बिल्कुल अगर हम घूमने गए हैं, अकेले ही गए हुए हैं मुंह सड़ा के, तो वो पहाड़ भी अच्छे नहीं लगेंगे। बिल्कुल और बिल्कुल। अगर साथ में 4 दोस्त हैं तो शायद कूड़े का पहाड़ देख के भी हम खुश हो ही जाएं। सही में 2 रोटी भी अच्छी लगेगी आपको, हम्म, सूखी 2 रोटी भी, वो भी बहुत अच्छी लगेगी अगर आपके साथ लोग अच्छे हैं। बिल्कुल नहीं, मेरी बिल्कुल। जो बेस्ट फ्रेंड है वो आईटीबीपी में इस वक्त दिल्ली रहती है, तो उसने भी मेरे साथ वही टाइम देखा है, हम दोनों ने मिल के वो टाइम देखा है। लेकिन जब वो भर्ती, एक टाइम पे ना मेरे में एटीट्यूड आया था, मैं सीरियसली बोलूँ, एक जी। इंसान में एटीट्यूड आ जाता है। तो मुझे लाइफ में अगर आज तक कभी मुझे एटीट्यूड फील हुआ अपने अंदर, उस टाइम पे फील हुआ था जब मेरा टूर लगा था, और वो उससे कुछ महीनों बाद भर्ती हो गई थी। जब वो गई तब मुझे फील हुआ कि मैंने क्या खो दिया, वो मेरे से दूर हो गई थी। तो मुझे तब फील हुआ था कि यार मैंने एक अनमोल इंसान खो दिया, बहुत ही, वो वहाँ चली गई है। तो आज तक भी कभी भी वो मेरा साथ नहीं छोड़ती, मेरे बुरे वक्त में भी, कभी भी कुछ भी हो, फाइनेंशियली हो या कोई भी, मैं रात को रो रही हूँ, कोई भी प्रॉब्लम हो, हमेशा मेरे साथ खड़ी रहती है हर टाइम पे। अच्छे रिश्तों का भी मिलना आपके अच्छे कर्मों की निशानी है। आपने अच्छे कर्म किए हैं कि कोई आपको अच्छा इंसान मिला, नहीं तो लोग में अक्सर वो देखे हैं रीलें डालते फिरते हैं कि कोई नहीं अपना आए थे, सब बगाने ने, सब धोखेबाज ने। और ज़्यादा दोस्त भी नहीं होने चाहिए आपके, हम्म, दोस्त 1 या 2, उससे ज़्यादा दोस्त नहीं होने चाहिए। इसका मतलब फिर तो आपने भीड़ इकट्ठी कर रखी है। बिल्कुल। दोस्त 1-2 ही अच्छे होते हैं, और वही पक्के होते हैं। जाते जाते आप हरियाणवी में कोई सोशल मैसेज देना चाहते हैं लोगों को, कि सक्सेस का राज देना चाहते हैं आप? बस मैं तो नहीं कहूँगी, सारा ने, ठीक है, ज़िंदगी में हँसते रहो, खेलते रहो, अपनी लाइफ का गोल ढूंढो, शांति जो लाइफ में बहुत ज़रूरी है वो देखो, अपने माँ बाप की सेवा करो। माँ बाप तो बढ़कर कुछ भी नहीं है, क्योंकि कल ना सब चल जाएंगे लाइफ में, तो माँ बाप गिल्ली खड़े रहेंगे, कुछ भी हो जाए। और जिंदे रहो, खुश रहो, हैप्पी रहो, खुशियाँ बांटते रहो और जिम जाते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, अपने शरीर ना ठीक रखो। बस मैं यही बोलूँगी, राम राम बाकी सबको। राम राम भाई सारे ने। सारे थैंक यू सो मच मैम, आपने हमें अपना थैंक इतना यू, कीमती आपने टाइम बुलाया, दिया। थैंक यू। अरे नहीं, मैं तो चाहता हूँ कि हर इंसान, देखो सीखने वाली नीयत चाहिए, आप हर किसी से सीख सकते हो। जो बंदा सोच रहा है ना कि मैं सब कुछ सीख गया हूँ, बस उसके दिन नेड़े ही हैं। तो ऑडियंस को भी आपकी बातें बहुत अच्छी लगी, मुझे पर्सनली बड़ा अच्छा लगा आपका एक्सपीरियंस जानकर। मुझे नहीं मालूम था, क्योंकि मैंने आपका इंस्टाग्राम जब सारा देखा, मैं कहा ठीक है भाई, चल रहा है काम इनका ना। तो बट अब बैक ऑफ द माइंड हर इंसान का संघर्ष ही उसको आगे लेके जाता है। बिल्कुल लोग बोल देते हैं कि ऐसा तुक्का लग गया, इन तो चलो चढ़ाई होगी, ये किसी को भी कुछ भी फ्री नहीं मिलता, बिल्कुल बिल्कुल। यू हैव टू पे समथिंग। बड़ा अच्छा लगा मैम आपसे बात करके, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਿਆ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਿਆ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲਿਆ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਤਜਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਣੀਏ। ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮਾਈਕ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੈਮ ਨੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਇੰਨੇ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਰਿਕਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋ, ਅਤੇ ਫਜ਼ੂਲ ਨਾ ਲੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਨਾ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਈ, ਨਾ ਸਮਾਜ ਲਈ। ਤਾਂ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕੁਛ ਕਰੋ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪੇ ਬੈਕ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਖਾਦੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਪਰ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਖਾ ਕੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਣ ਕੋਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸੁਣਿਆ, ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਗੈਸਟ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਿਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।